السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ریاض سلیفی صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 خیریت ہے جی؟ جی ایک مسئلہ یہ ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ عین اللہ پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا؟ اس پر بہت سارے لوگ عین اللہ پر بات کرتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کنفیوژن ہو عین اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عین اللہ عین اللہ آپ جانتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اس تعلق سے؟ جی جی اس کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحیح کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، جی رحمان عرش پر مستوی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے۔ انہ احاط بکل شیء علما، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ نہیں، وہ جو پہلی آیت آپ نے پڑھا ہے جی وہ ذرا بتائیے تو کیا چیز؟ وہ پہلے ہی آپ نے آیت پڑھا نا کہ جی الرحمن علی العرش استوی، استوا کا کیا مطلب لیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اعلی استوا، اعلی بلند ہوا ہے نا، بلند ہوا، اچھا جی۔ اور بھی کئی معنی اس کی چیزیں ہیں۔ جی جی نہیں، اصل میں اچھے سے سمجھنا چاہتا ہوں پوری اس میں جو پوری آیت ہے وہ کیا ہے، ذرا پوری آیت پڑھیں گے؟ جی 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 اس میں پوری آیت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے کچھ۔ آپ نے ابھی پڑھا نا، اس کو پوری آیت پڑھیں گے پوری اوپر سے؟ رک جائیے تھوڑا سا، کوئی ہمیشہ تیار نہیں رہتا ہے، کہاں ہے آدمی کیا ہے۔ نہیں، یہ آیت میرے خیال سے سورہ فرقان کی پڑھ رہے گا، متعدد مقامات پر ہے، جیسے ایک آیت ہے، ہاں ایک آیت پڑھ لوں پہلے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، سورہ سجدہ کی، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 59، ٹھیک ہے۔ جی تو اس میں ہے سورہ سجدہ میں بھی اس طرح کی ہے۔ ہاں چلیے آگے چلو۔ ہاں سورہ سجدہ میں بھی ہے آیت نمبر 4، ٹھیک ہے۔ تو اس سب آیتوں میں یہی ہے کہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوی علی العرش، اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا، ثم استوی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین آسمان بنانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اس سے پہلے کہیں اور تھا۔ جی 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 تو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ حدیث میں وہ موجود ہے، عقیدہ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اچھا ماشاء اللہ، وہی جب حدیث میں موجود ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا اللہ، وہ حدیث میں موجود ہے، تو عقیدہ کیوں نہیں رکھیں گے؟ تو عقیدہ کیسے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، صرف عرش پر ہے، اور دنیا میں جسے عقیدہ کیا رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور باقی اور جگہ اس کا علم ہے، ایسا عقیدہ رکھیں گے؟ اور یہی عقیدہ ہے، سلف کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ سلف کا بھی عقیدہ ہے، اپنا بھی عقیدہ ہے۔ جی 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 تو عرش پر کیا بیٹھا ہوا مانتے ہیں کہ نہیں وہ سب چوتیاپا ہے، چوتیاپا مت کروا ہے نا، اس کو جو ہے بیٹھا ہے، لیتا ہے، سویا ہی آپ بولو گے اور آپ کی جماعت بولے گی، ہم لوگ نہیں بولتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے نا۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعتی آدمی یہ کام کرتا جو آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، سمجھ نہیں رہے ہو آپ جیسے لوگوں سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے نا، یہ سوال مت کرو اس طرح، پوچھو آپ۔ نہیں بالکل یہ آپ کے مولانا جونا گڑھی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا ترجمہ ہو، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں کے خلاف کسی کی بات ہو۔ اچھا ماشاء اللہ، ہاں غیر مقلد بھی بولتے نا، اس لیے بولتے تو غیر مقلد بول کے آپ تم تقلید کی بات کرتے ہیں، ہم کیا کہ فلاں کے میں فلاں نے یہ لکھا
फला में जो लिखा हुआ वो समझे फला, उसके पाबंद नहीं, हम भी आलिम हैं, आमी और जाहिल नहीं है, समझते हैं उसी। जी 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 जी। अच्छा, ये जो इस्तवा से आप मुराद ले रहे हैं कि अल्लाह ताला, इस्तवा से क्या मुराद है? अल्लाह अर्श पर है बस, अच्छा, है ना। तो उसकी बारीकियां, उसकी कैफियत कुल है, ये सब किसी को पता नहीं है। तो हमारे सलफ में से इमाम मालिक है, उन्होंने कह दिया उस ताल्लुक से सवाल भी नहीं होना चाहिए कि अल्लाह किस पोजीशन में है, कैसे है, किस अंदाज में है, ये सवाल भी दुरुस्त और सही नहीं है मेरे भाई। जी जी। तो ये सुम्मस्तवा इला समाई जो आया है कि अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुस्तवी हुआ, तो आसमान पर भी मान सकते हैं क्या? क्या सुम्मस्तवा इला समाई, अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुस्तवी हुआ, तो आसमान पर भी मान सकते हैं? अर्श कहाँ है? जमीन के नीचे है। अर्श और आसमान एक है, आसमान पर है ना। आसमान तो कहीं पर अर्श ना जिक्र होकर आसमान का जिक्र है, बुलंदी का जिक्र आया हुआ है, ठीक है। आसमान बुलंदी पर है, अर्श बुलंदी पर है ना। तो इसीलिए आसमान का भी जिक्र आया, सूर्य मुल्क में भी मौजूद है। क्या तुम जो है बेखौफ उस जात से कि समाए जो आसमान में है, ये चीज है। लेकिन अल्लामा जहबी, अल्लामा इब्न हजर, सुनिए सही बुखारी की वो रिवायत जरा देखें, है ना। कौन हाँ, कि वो किताब जिसमें लोगों की तकदीरें लिखी हुई हैं, सब कुछ महफूज है, यानी लौहे महफूज, फहुवा इंदहू, है ना, फहुवा इंदहू अलल अर्शी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, अर्श के ऊपर, है ना। वो जात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है, अर्श के ऊपर, फौका सबए समावाती, सातों आसमान के ऊपर है वो। तो ये मुफस्सिरीन ने, सुनिए ना, इसका आयत मुफस्सिरीन ने ये बात इस पर ये कहा है जो आप कह रहे हैं ना, ये कहा है अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी और दूसरे वगैरह ने कि इन दो फिल लुगत लिल मकान अल्लाह मुनज्जिहुन अलिल हुलूल फिल मौजी इन्नल हुलूल अर्जुन यफना हुआ हादिसुन वल हादिस ला यलीका बिल्लाहि फिल जालिका। उसकी उन्होंने नफी की है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह अर्श के पास है, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो किताब जो लिखी है जिसमें लोहे महफूज का कहा जाता है, वो अर्श के पास है, ना कि अल्लाह ताला अर्श के पास है। ये सारे मुफस्सिरीन ने, सुनो, ये सारे मुफस्सिरीन ने ये सारे माने जो मुहद्दिसीन ने लिया है कि ये मतलब नहीं है यहाँ पे। ये वकाल अल मुजस्सिमा, ये इसका माने मुजस्सिमा ने लिया है, एक मुजस्सिमा फिरका जो कह रहा है वो इसका माने लिया है, ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात ने इसका माना नहीं लिया है जो आप ले रहे हैं। और दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं क्या माना अभी तो बताया, क्या माना? हाँ, किसका माना? अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का माना या उस किताब का? हाँ, जो आपने वो पढ़ के मुराद लिया कि अल्लाह ताला वो अर्श पर है, ठीक है। जैसे आप अभी आसमान की बात कर रहे हो, आप सवाल ये कर सकते हो कि अल्लाह अर्श पर है, कहाँ है वो? उस पर मैंने आपको हवाला दिया, सही है, बुखारी की रिवायत वो मौजूद है। क्या है बताइए? उस पर मैंने दिया कि वो अर्श के ऊपर। सही बुखारी की रिवायत पढ़िए। फहुवा इंदहू फहुवा अल्लाहुल महफूज, है ना। इंदहू फौकल अर्शे, वो उसके पास है अर्श के ऊपर, ठीक है। यानी अल्लाह जब अर्श के ऊपर है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब भी अल्लाह के पास है, ठीक है। अच्छा, ये माने आपने लिया है। हाँ, तो ये देखिए फतहुल बारी में इब्ने हजर अस्कलानी लिखे हैं, वो फौका अर्शे रहमान कजालिल अक्सरी बेनसब फौका अलल जरफिया, ठीक है। ये जरफी के माने में है, यानी वलैसा कौलुला इन्नल्लाह अलल अर्शी आई ममास लहु अ मुतमक्किन फीही अ मुतहैजन फी जिहति मिन जिहाती बल हुआ खबरुन जआ बिही तौकीफ फकुलना लहु व नफीना अनिल तकईफ इजा लैसा कमिसले सैनु बिल तौफीक। आगे भी लिखते हैं वो कौली फौका अर्शे सिफतुल किताब कीला इन्ना फौका हाहुना बेमानी दूना कमा जाफी कौलिही ताला बाऊजतन फमा फौका। ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। फौकल अर्शी और इंदहु इल्मुल जाल का फहुवा यंसाहु वला यंसाहु, कि आसमान के ऊपर उसके पास इल्म है, वो उसको भूलता नहीं है। इससे मुराद वो कह रहे हैं कि इससे मुराद फौका अर्श का कि आई जिक्र हो, इल्म हो, उसका इल्म के एतबार से है। वो लैसा कौल इन्नल्लाह अला अर्शी, हमारा ये कौल नहीं कि अल्लाह ताला अर्श पर है,
یا وہ عرش پر ہے یا اس میں متمکن ہے. نہیں غلط. ابھی آپ جو ترجمہ کر رہے ہو غلط. اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پر ہے. عرش کی نفی نہیں کیا انہوں نے. یہ بالکل عرش کی نفی کیا ہے. دیکھو اللہ کے عرش پر موجود ہونے کی نفی نہیں کیا انہوں نے. ایسا کوئی سلفی کوئی سلف کر ہی نہیں سکتا. چلو میں ایک منٹ کتاب کی بات کر رہے تھے تو اللہ کی بات بیچ میں کہاں سے آیا؟ ایک منٹ میں محترم آپ پریشان نہ ہو. آپ دلیل میری بھی پریشان نہیں, پریشان آپ ہوتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی نفی کوئی نہیں کرے گا سلف میں سے. یہ چیز اچھا یہ بات آپ کی ہے کہ نہیں کرے گا. یہ دیکھیے میرے پاس بھائی درجنوں اس پر ہمارے پاس وہ ہے. ارے سنیے نا, اچانک چلتے پھرتے آدمی کسی کو بھی آپ فون کر دو گے تو ظاہر بات ہے. چلیے میں کب فون کروں آپ کو, آپ اس پہ بات کریں. نہیں آپ بات کرو ابھی کہیں نہیں جانا ہے. آپ کب کرو بتائیے. نہیں آپ کب کرو. ابھی بات کرو ابھی چلو آپ. تو ابھی بول رہے تھے کہیں نہیں جانا آپ نہیں. اچھا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ کہے جو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو عرش مانے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو جہت نہیں مانتا کوئی نا, اور یہ بھی کوئی نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج ہے عرش کا. یہ بھی کوئی نہیں مانتا. یہ جو مانے وہ کافر آدمی ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے نا. کس نے کہا وغیرہ تمام ظاہر بات ہے کہ دیکھیے حنفیہ میں یہ چیز موجود ہے. حنفیہ علو کا انکار کرتے ہیں. مستوی کا کیا مطلب ہے بتائیے حضرت. مستوی کا کیا مطلب؟ مستوی کا کیا مطلب؟ اللہ عرش پر بلند ہوا. یہ کس نے یہ صرف عرش پر بلند ہوا مطلب پہلے کہیں اور تھا بعد میں بلند ہوا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سنیے نا پہلے صحیح مسلم کی حدیث سنو پہلے آپ, ہے نا. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. یہ جواب ہے آپ کا. کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا ترجمہ کریے. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. یہ صحیح مسلم کی روایت. ہاں تو آپ کیا اس سے ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ ترجمہ کیا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہو, فتح الباری پڑھ کے سنا رہے ہو تو آپ سمجھ لو نا. آپ ترجمہ کیوں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر کو لکھ دیا. اس وقت اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا. ٹھیک ہے, عرش پانی پر تھا. ماشاء اللہ آپ نے مان لیا کہ یہ زمین آسمان کے بنانے سے پہلے. میں نے ماننا پڑے گا. میری بھی سنو نا بھائی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب زمین و آسمان بنایا تو اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں تھا, کہیں اور تھا. اس کے بعد عرش پر منتقل ہوا, بلند ہوا. جو بھی خود آپ جو ہے تو آپ نے خود کہا ہے نا. استوا کے کتنے معنی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کئی معنی کے لیے آتا ہے. نہیں کتنے معنی ہیں تب پھر کیسے کس نے سلب میں کس نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے؟ یہ کون سے مفسرین نے لیا ہے یہ بتائیے. کئی ایک مفسرین ہیں, پوری کتاب موجود ہے ہمارے پاس, موجود ہے. ٹائم تھوڑا لگے گا. کچھ نہیں. دیکھو میرے پاس علامہ قرطبی کی تفسیر قرطبی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے الاستواء من صفت الافعال علی اکثر الاقوال. اکثر مفسرین کے نزدیک استوا صفت افعال میں سے ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک یعنی وہ فعل ہے اللہ کا, نہ کہ اللہ کی ذات آپ مراد لے رہے ہیں. بتائیے. ہاں اب بتائیے یہ کیا سلف کے غلط معنی لیے ہیں؟ علامہ آپ کے سنیں ایک منٹ آپ مجھے 2 منٹ تو دیجیے کچھ بات کرنے کے لیے. آپ ہی خالی بولیں گے. میرا دیکھیے آپ کہیں گے آپ عالم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. آپ کے دیکھو ثناء اللہ امرتسری کہہ رہے ہیں اللہ بذات خود اور علم کے ساتھ ہر چیز اور ہر کام پر حاضر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے حکیم محمد سیال کوٹی کہتے ہیں کہ یقین کرے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر و موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام خلوتوں اور جلوتوں میں حاضر و ناظر اور موجود ہے. اس طریقے سے آپ کے نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا, ہر چیز کی ہر وقت کی خبر رکھنا خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سنی موضوع البانی آپ کے ساتھ کہتے ہیں علامہ البانی. یہ سنیے موسوعہ العلامہ البانی کتاب کا نام ہے, اس کے صفحہ نمبر 689 میں ہے ان اللہ عز و جل غنی عن العالمین وهو ليس بحاجۃ الى العرش والى الجلوس علیہ والتمکن منہ.
کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے دنیا سے، اور اس کو نہ عرش کی حاجت ہے، نہ اس پر بیٹھنے کی، نہ اس پر تمکن ہونے کی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سن لیجیے کون کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے؟ کون کہہ رہا ہے اللہ کو حاجت ہے عرش کی، اللہ عرش کا محتاج ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا بتائیں آپ. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے صدیق حسن خان بھوپالی، تو آپ کے جونا گڑھی محمد جونا گڑھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے دھرم میں جب تھے نا تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. وہ گمراہ فرقوں کے تھے کیا؟ وہ گمراہ فرقوں کے تھے؟ نہیں وہ آپ کے دھرم میں تھے تو بہت ساری. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ گمراہ فرقوں کے تھے کیا، یہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں کوئی بھی تھے وہ. اچھا کوئی مطلب یہ عقیدہ گمراہ ہوا نا، جو انہوں نے گمراہی والی بات کی تو گمراہ ہوا نا. کس نے یہ لکھا ہے؟ اللہ. ہاں آپ کو بتایا تھا آپ کے جونا گڑھی علامہ، آپ کے جونا گڑھی بولے ہیں، آپ کے صدیق حسن خان بھوپالی بولے ہیں، یہ تو گمراہ تھے کیا؟ اچھا یہ آپ کے جو یہ نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو یہ گمراہ کے فرقے کیا ہے؟ یا ثناء اللہ امرتسری نے کہا ہے یہ جو عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس عقیدے کو ہم نہیں مانتے. کوئی بھی ہے نا فرشتہ آسمان سے جھانک کر بولے تو نہیں مانتے اس کو، ٹھیک ہے. چلیے آپ مقلد نہیں ہے، وہ دلیل دیجیے کو بتاؤ، آپ اپنے اقدار کو بتاؤ، غیر مقلد کیسے ہو اور اس طرح کی باتیں آپ یہ دلیل دیجیے. علامہ جعبی جو کہتے ہیں، علامہ ہلو کیا بول رہے ہیں آپ؟ علامہ جعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، تو ایسا عقیدہ دلوں کو فساد کی طرف لے جانے والا ہے. بتائیے آپ علامہ جعبی سے زیادہ جانتے ہیں. علامہ جعبی کو جانتے ہیں؟ امام ذہبی محمد بن حسین ذہبی، ہاں جو محدث اسماء الرجال کے ماہر ہیں علامہ جعبی، تو آپ ان کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ارے جانتے ہیں بھائی، کرتے ہیں، جانتے کیوں نہیں. ہاں اچھا ماشاء اللہ آپ ان کو بھی جانتے ہیں. تو چلیے وہ آپ ان سے اچھے عقیدے والے ہیں، وہ خراب عقیدے والے تھے؟ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ کچھ چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. فلانے نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا، ظاہر بات ہے وہ آپ کی نگاہوں میں کیا ہے نہیں یار نگاہوں. تو آپ ٹھیک ہے آپ عبارت میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کے دیکھو علامہ البانی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ان کو بھی نہیں مانتے. بتائیے. علامہ البانی ہو کوئی بھی ہو ہم سب کو مانتے ہیں، جہاں کتاب و سنت وہاں نہیں مانیں گے ہم کسی کو بھی. تو آپ ہی دکھا دیجئے نا کہ کتاب و سنت میں کہیں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے. بتائیے چلیے دلیل دیجیے، ایک دلیل دیجیے. آپ ذرا پہلے وہ ثابت کر دیں جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ قول کس کا ہے آپ ذرا پہلے بتا دیجیے اس کو. میں تو بتایا آپ کے نذیر حسین دہلوی ہیں، آپ کے ثناء اللہ امرتسری ہیں، اور اسی طرح دنیا بھر کے آپ کے سارے علماء ہیں. صادق حسین سیال کوٹی ہے، آپ کے فتاوی علماء اہل حدیث میں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے رئیس احمد ندوی جو غیر مقلد کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے. اور اسی طرح صدیق حسن خان بھوپالی کے ان کی بیگم کا قول بھی یہی ہے. اور ہاں صدیق حسن خان بھوپالی تو کہتے ہیں کہ محققین محدثین کا نظریہ یہی ہے کہ معیت حقیقی اللہ کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، اس میں تعویل نہیں کرتے. اور آپ کے علامہ شوکانی بھی یہی کہتے ہیں. تو آپ بتائیے اس کا کیا فتویٰ ہے ان کے خلاف؟ ہاں بتائیے. سن لیجیے، دیکھیے جی عقیدے میں آپ کس کو مانتے ہیں؟ تمام حنفیہ عقیدے میں کس کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل عقیدے میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. سنیے بات یہ نا ہماری بات کر رہے ہیں ہم. عقیدے میں ہو قرآن و حدیث کا مانتے ہیں، لیکن فہم سلف کے مطابق اور فہم علماء محدثین اور مفسرین کے مطابق. آپ بتائیے. چلیے آپ بتائیے آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ کس کو مانتے ہیں؟ کس میں عقیدے میں ہو آپ کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز میں عقیدے سے لے کے چھوٹے بڑے تمام فروعی اور اصولی مسائل سب میں ہے نا ہم کسی کے مقلد اور تابع نہیں ہے. یاد رکھنا. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کے مقلد ہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ بتائیے. سنو پہلے، آپ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہو، ٹھیک ہے. آپ فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. سچائی ہے یہ.
اچھا اب آپ نے مجھ سے ہمارے سامنے چلیے ایک سنیے ایک بات بتائیے، آپ کس عقیدے میں کس کو مانتے ہیں؟ نہیں یار یہ غلط بات ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے بتا دیا، آپ بتائیے عقیدے میں کس کی مانتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے امام اور مقتدی رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، کتاب و سنت کو ہم صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں. صحابہ کے فہم کے مطابق، بس صرف صحابہ کے فہم کے مطابق؟ ہاں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تابعین ہیں، ان کے فہم کے مطابق. ہمارا کوئی مخصوص امام ہو اس کو لے کر کے آنکھیں بند کر کے چلیں ایسا نہیں. اب یہ سب باتیں بعد میں کر لیجئے، آپ لگتا ہے گھبرائے ہیں بہت زیادہ، آپ گھبرا گئے ہیں. میں صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کس کو مانگے تو آپ نے بتا دیا قرآن و حدیث، آپ صحابہ تابعین طب تابعین یہاں تک آپ نے لیا ہے. ائمہ محدثین اور مفسرین، ائمہ مفسرین کی نہیں مانتے؟ نہیں وہ تو آپ کی اپنی باتیں ہیں. ابا تابعین تبا تابعین اتباع تابعین میں کیا ائمہ محدثین نہیں آئیں گے؟ ابھی امام مالک کا حوالہ شروع میں آپ کو میں نے دیا، ان کا ذکر کیا ہے نا، ان کی عبارت پڑھ کے آپ کو بتایا. چلیے ایک بات بتائیے، جو ائمہ محدثین جو ہے طب تابعین کے بعد ہیں اس کو نہیں مانتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ائمہ محدثین وہ طب تابعین کے بعد ہیں ان کو نہیں مانتے کیا؟ یہ بتائیے. دیکھو جس کسی کی بات رہے گی ماننے کو سلف سے کیا مراد ہے؟ سلف سے کیا سلف سے کیا مراد ہے محترم؟ سلف سے کیا مراد ہے؟ ارے یار آپ اچھا آپ کو جناب آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ ڈرے کیوں ہیں آپ؟ ڈرے کیوں ہیں میرے بھائی؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا آپ ڈرے کیوں ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں کسی اور پہ، آپ بھاگ رہے ہیں کہیں اور پہ، کیا وجہ ہے؟ ہماری اصول پہ بات ہو رہی ہے. آپ امام ابو اچھا میں نے دیکھا ہے جتنے آپ جیسے فرقہ اہل حدیث کے ہوں یا جو غیر مقلد ہوں، ان سے کوئی بھی بات کرو تو ان کے اندر جیسے بک سنو پوری بات سنے پوری. ارے یار سنو بھائی میرے بھائی، ان کو اتنا گھبراہٹ ہوتی ہے اور فقہ حنفی یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ بھاگ جاتے ہیں بار بار، جبکہ ان کا ذکر ہی یا ان کا بھی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات ہماری ابھی سنیں نا، بات ہماری سنو یار ابھی ہم کس کے تکلیف سے بات کرو گے؟ تکلیف پہ بات کرو گے؟ سنو تکلیف پہ جب بات ہوگی تب یہ آپ بات لائیے گا، ابھی ہم پہ تکلیف کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات آئندہ پہ ہو رہی ہے. تکلیف کی بات یہاں کر لی نہیں ہے. آپ کو صرف میں یہ بتایا پوچھ رہا ہوں کہ شریف عقیدے میں آپ کے مقتدی ابھی بھاگ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ کے سوال ایسے نہیں. سنو میرے بات گھبراؤ نا. ریاض صاحب ریاض صاحب سنیے نا یار کے بارے میں پوچھے گا تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ رحمان نے قرار پکڑا تخت پر. اب ذرا سنائیں. امام علی ابن مہدی طبری نے کتاب مشکل آثار میں فرمایا ہے جہاں لوگ کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر اپنے یہ سنو یہ زبیر علی جی کی کتاب پڑھ رہے کیا؟ سنو بولتے ہیں جانور کی مستدی ہوا، یہ جو مستدی ہوا مستدی ہوا یا میرے سر پر ہے، سب کا مانا اطلاع کے لیا جائے گا ہے نا. مجھے لگتا ہے مخلوقات سے جدا ہے. مجھے لگتا ہے
ये सब गलत हवाले हैं, ये सब गलत हवाले हैं, ये सब आपके गलत हवाले हैं जनाब, ये सब आपके गलत हवाले हैं। ठीक है, आप गलत हवाले दे रहे हैं, नहीं गलत दे रहे हैं आप। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब देना है। सुनिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ तब इतना क्यों? अरे सुनिए यार सुनिए, तुम कुछ तुम यार डर क्यों गए हो? डर क्यों गए हो? कहीं से नहीं साबित है, कहीं से नहीं साबित है। सुनो अरबा का इत्तेफाक है, याद रखना इसको। चलो हवाला दे दो, हवाला दे। वही तो दे रहा हूँ। हवाला कहाँ है? मेरे व्हाट्सएप पे हवाला भेजो। कौन सी किताब है, कौन सी किताब है? हवाला दे। वो जुबैर अली चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, वो असल किताब का हवाला भेजो इधर। हाँ, असल किताब भी कर क्या हुआ? नहीं, असल किताब से हवाला। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बात नहीं होती है। सुनो, ऐसा तरीका नहीं है। सुनो ना बात, ऐसे ही होती है। सुनो ना मोहतरम, रुकिए। सुनिए, आप क्यों इतना घबरा के, मेरे ही नहीं समझ में आता। आप शांति रहे। आप घबरा क्यों रहे हो? 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 आप क्यों डर रहे हो? डर रहे हो? इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं तो सुकून से बात करना चाहता हूँ, मैं तो सुकून से बात करना चाहता हूँ। आप घबरा क्यों रहे हो? सुनो तो आप रुको ना, आपका ये दावा है। सुनो बात को, अरे सुनो ना बात को यार, पहले मेरी बात तो एक उसूल पे आ जाओ। देखो, एक चीज है दलील, ठीक है? अगर आपका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जात के एतबार से सिर्फ अर्श पर है और कहीं नहीं है, ये तो आपका अकीदा है। इस अकीदे पे आप कुरान से कोई दलील है तो दें, और हदीस में कोई दलील है तो दें, या कोई आइम्मा सलफ से कोई आपके पास दलील है तो दें। ऐसे बड़बड़ करने से नहीं मतलब है। मैं जो हवाला पढ़ूंगा, मैं आपके व्हाट्सएप पे असल किताब भेजूंगा। आप जो हवाला पढ़ें, मेरे व्हाट्सएप पे असल किताब भेजें, ठीक है? और इबारत पढ़ें, तर्जमा करें और अपना मतलब बयान करें, ठीक है? इस तरह आप चिल्लाएंगे, सुनो ना, इस तरह आप चिल्लाएंगे डर के मत। एक मिनट सुनो, बता रहे हो ना, ये बहुत बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब है, लेकिन प्लान के साथ होता है ना, बता के होता है। आप अचानक तलब पड़ेगा, तुमने अपना नाम बताया, चलिए ठीक है, बताया कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, आपने धर्म मजहब आपने बताया। आपने तो पूछा ही नहीं ना, आपने तो पूछा ही नहीं, आपने तो पूछा ही नहीं रहे हो, और हमने तो आपसे भी नहीं पूछा। तो आप कब फोन करूं मैं आपको? कब फोन करूं आपको? आप तैयारी करके लगता है कि मतलब अरे यार तुम्हें बता करे क्यों हो यार मेरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे हो? आज शांति से बात करो, चिंता से बात करी है, इतना घबरा क्यों गए? कपकपी क्यों तारी हो रही है? मैं तो उसूल आपने जाते हैं जो बंदी। सुनो आपने कहा कि आपके पास हवाले नहीं। आप मुझे टाइम दो, कितने दिन के बाद मैं फोन करूं जब आपके पास हवाले आ जाए? सुनो, टाइम बाद की बात है ना? अभी सुनो, सुन लो आप और रिकॉर्ड कर लो बात तो मेरे। क्या सुनो, कहीं भाग के मत जाओ आप। अच्छा हाँ, अभी सुनो, भागना नहीं है अभी, ठीक है? हाँ सुनो, सब मौजूद है माशाल्लाह। बताइए अच्छा, एक चीज ये बताओ, आपको मुझसे सवाल कर रहे हो, आपका अकीदा क्या है रहमान के बारे में? हाँ बिल्कुल सही है, ये भी तो बताओ। तो उसको सुनिए अरे सुनो यार, बड़बड़ कर रहे पागल आदमी, सुनने ना, मेरा अकीदा है। अरे सुनना बात को, तुमने सुनना, देखो यार है ना, सुनोगे मत? अरे यार सुनोगे, मुझे भी तो बोलने दो, ठीक है? एक अकीदा है। अरे यार फिर वही बात है, मैं तुम ही बड़बड़ करोगे। ये पागलों की निशानी है जो सिर्फ बड़बड़ करे। तो बात करे, जो बात करे चाह रहे हो आप, है ना? तुम खाली अपनी बड़बड़ कर रहे हो, दूसरे के सुन ही नहीं रहे हो यार। खाली दूसरा भी कुछ कहना चाहता, उसको भी मौका दो ना, ठीक है? अभी आपसे मैंने क्या सवाल किया, हजरत आपका अकीदा क्या है तो बताओ। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, तफसील से वही कहने जा रहा हूँ कि आपकी बात एक है, आपका अकीदा, ठीक है? आपका दावा है कि
اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. اس عقیدے پہ آپ اپنا دلیل قائم کریں گے. پھر آپ مجھ سے پوچھے بھائی ہمارا تو ہو گیا، آپ اگر دلیل یا تو ثابت نہیں کر پائے تو بھی یا ثابت کر دیے تو بھی آپ کا جب بات ختم ہو جائے گی آپ ہم سے پوچھیے بھائی ہم نے تو ساری بات ہو گئی، اب آپ کا کیا عقیدہ ہے اس پر. ہم اپنا عقیدہ بتا کے اس پہ دلیل قائم کریں گے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی جھگڑے لڑائی یا چلانے کی بات ہی نہیں، ایک دم سہولت سے بات ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو ہم مان لیں گے، اور ہم آپ کا عقیدہ اگر غلط ہم ثابت کر دیے تو آپ اس کو مان لیں، بس یہی بات ہے، اور کیا بات ہے. آپ اپنا عقیدہ ہے اور اپنا عقیدہ آپ نے بیان کیا، آپ نے کہا آپ کے پاس حوالے نہیں ہیں، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ٹائم لیجئے، 2 دن 4 دن 1 ہفتہ، اس وقت مجھے بولیے، میں اس وقت آپ کو بالکل فون کروں گا جب آپ کو یہ ہو جائے کہ آپ کے پاس حوالے جمع ہیں، آپ حوالے سے دے کر حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اس وقت کا آپ ٹائم جو بھی لینا چاہیں آپ لے لیں، ایک دم سمپل بات ہے. ٹھیک ہے، بولیے. ہو گئی آپ کی بات؟ جی بس جناب بتائیے. ہو گئی آپ کی بات. جی آپ مجھ سے کیا چاہ رہے ہو، کیا سننا چاہتے ہو آپ نے کئی ایک علماء کے بیانات پیش کر کے ان کے حوالے دے کر آپ کیا بتا رہے ہو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے؟ میں ابھی کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا جو یہ عقیدہ آپ نے کہا ہے اللہ عرش پر، صرف عرش پر اپنی ذات کے اعتبار سے اور کہیں نہیں ہے، آپ اس کی دلیل دے دیں، بات ختم ہے. دیکھو میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ سن لو، اس کو ریکارڈ کرو. اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اس کا ہر جگہ احاطہ کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر. ماشاء اللہ. اب اس پر ایک قرآن کی کوئی آیت پیش کریے جس میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے. آپ ایک آیت پیش کیجئے، اگر آپ کے پاس آیت نہ ہو تو حدیث پیش کیجئے. یہی طریقہ ہے نا کہ اور کوئی طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے نا. ماشاء اللہ آپ نے مان لیا. تو چلیے ایک آیت پیش کیجئے جس میں ہو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے، بتائیے. ٹھیک ہے. الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے. الرحمن سورہ طٰہٰ میں اور کئی ایک قرآن کی آیات اس پر دلیل ہے باضابطہ، اس مضمون کی وہ آیات ہیں. الرحمن علی العرش استویٰ، ثم کا ذکر ہی نہیں ہے سورہ طٰہٰ کے اندر. الرحمن علی العرش استویٰ، ٹھیک ہے، یہ اس کو دیکھ لیں. سنو میرے بھائی، اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے فوق العرش، عرش کے اوپر. ایک منٹ، آپ نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس قرآن کی آیت میں جو آپ نے استوا کا جو مفہوم کیا لیا ہے وہ مجھے بتا دیجیے. استوا کا مفہوم میں نے یہ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، ٹھیک ہے. تو چلو استوا، دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا علم کے اعتبار سے اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. مجھے یہ بتائیے، سنیے استوا مستوی یہ الفاظ آپ نے جو استعمال کیا ہے، تو اب کی یہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو یہ ایک چیز بتائیے، الرحمن جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے یا صفت ہے؟ دوسری بات یہ بتائیے کہ استوا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنی ذات پر عرش پر مستوی ہونا، قائم ہونا، یہ معنی آپ کسی لغت سے دیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے دیں گے یا صحابہ تابعین، تابعین یا ائمہ محدثین و مفسرین کی کوئی تفسیر ہمیں پیش کیجئے جنہوں نے اس آیت کا مطلب لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہوا صرف. ٹھیک ہے، آپ بتائیے. جی بتائیے، آپ پیش کیجیے. جی اس پر سلف کی تشریحات موجود ہیں میرے بھائی، ایسا نہیں. آپ ایک ایک کر کے
تفسیر بھیجیے، اور جو بھی تفصیل ہے کتاب سے، اصل کتاب سے، آپ جبیر علی جئی کی کتاب لیں گے یا فلاں اپنے عالم کی لکھی ہوئی کتاب لیں گے، وہ دلیل نہیں مانی جاتی. اصل کتاب سے آپ پیش کریے جس نے استوا کا مطلب یہ لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر عرش پر صرف عرش پر مستوی ہوا. دیکھیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. ان تمام آیات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ متشابہ آیت سے، ٹھیک ہے، متشابہ آیات ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ان آیات کو متشابہ مانا ہے. حافظ ابن قیم نے پوری عبارت کو اہل حدیث کے عقائد میں شمار کیا اور کہا حجاز، شام وغیرہ کے علماء کا یہی مذہب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر، اللہ کی ذات ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا ارواح کی یہ عبارت ہے. ہاں کیا چیز؟ حاد الارواح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، شہرۂ آفاق کتاب. مجھے بھیج دیں وہ حوالہ ان کی اصل کتاب سے. آپ اصل کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا؟ آپ اصل کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا؟ اصل کتاب ہے، کوئی روڈ پہ لے کے اصل کتاب سے نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں، روڈ پہ لے کے نہیں کوئی اصل کتاب چلتا ہے. کبھی بھی آپ کسی کے پاس فون کر دو ہے نا، اس کے بعد کہو اصل کتاب دے دو. یہ دیکھو میں نے ہائے لکھ دیا ہے، آپ اصل کتاب سے پڑھو. اچھا، آپ نے ابن تیمیہ کا جو حوالہ نقل کیا ہے، آپ اصل کتاب سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میں نے نقل نہیں کیا، علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میں نے. علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، ان کا حوالہ آپ نقل کیے ہیں. وہ حوالہ ذرا بھیج دیں گے؟ ہاں بھیج دیں گے. ہاں تو چلیے بھیجیے. اب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کسی اپنے عالم کی کتاب لے رہے ہیں تو ان کو ان کے تقلید میں آپ ایک چیز بتاؤ. اچھا ایک چیز بتاؤ، سنو پہلے اتنا آپ سن لو. اتنا آپ کو کبھی فون کروں اور آپ کس جگہ پر ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہ ہو، اور اس کے بعد کہوں اصل کتاب لا کر کے دو، حوالہ دو، یہ طریقہ ہے، یہ اصول آپ کو سکھایا گیا ہے؟ میں تو آپ سے ابھی یہ اصول سکھایا گیا ہے. سنو نا، آپ سے تو میں نے کہا کہ آپ ٹائم لے لیں، ہفتہ 2 ہفتہ. ٹائم نہیں، یہ بات ہی نہیں. ٹائم لے لو، آپ ٹائم لے لو. نہیں، سنو پہلے آپ کرنے سے پہلے، کوئی بات بڑھانے سے پہلے ہی آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ اس ٹاپک پر ہم آپ سے بحث کریں گے، مناظرہ کریں گے، مباحثہ کریں گے. یہ اصول اور قاعدے کی بات ہوتی ہے، ورنہ چلتے پھرتے کبھی بھی کوئی آدمی کسی سے سوال کرے اور کتاب لاؤ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو مانتے ہو؟ سب کو مانتے ہیں، اصول کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جن کے بیانات ہیں ان کو مانتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کہیں سے کسی سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اس کو حافظ ابن قیم کا جو حوالہ دیے ہیں ان سے لغزش نہیں ہو سکتی. کیا چیز؟ حافظ ابن قیم کا جو حوالہ دیے ہیں ان سے لغزش نہیں ہو سکتی. کسے؟ ابھی حوالہ آپ نے دیے ہیں نا، لغزش کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو آپ حوالہ صرف آپ کے ائمہ سے نہیں ہو سکتی ہے نا. تو دیکھو آپ کو نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی لگا ہوا ہے آپ لوگوں کو. تو آپ نے حوالہ کیوں دیا؟ جب لغزش ہو سکتی ہے تو آپ حوالہ کیوں دیا ان کو؟
यानी आप अपने सुनो आप हवाला क्यों दिया, जब इसका ये मतलब है जिसको आप ना माने उसको बोल दें इनसे लफ्जिस है, और जिसको आप दलील माने उनको आप नबी बना ले। वास्तगफिरुल्लाह, ये आपका वसूल है। नहीं आप बनाए हो, बदल डाला है यार दिन का। ये हम तकलीफ पे आपसे सुनो आपसे तकलीफ पर भी बात करेंगे, आपके अमाल पे भी बात करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। आपका जितनी आँख के अंदर जोश गर्मी है सब निकालेंगे, लेकिन ये पहले मजमुआ इब्ने फतावा सुने ना, मजमुआ इब्ने फतावा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फतावा नहीं, किताब का नाम कायदे से लिया करो, किताब का नाम भी लेना भी नहीं आता। अच्छा क्या है फतावा है? नहीं, मजमुआ फतावा लिखा है, इसमें अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम नहीं है, मजमुआ फतावा नहीं, अलिफ फतावा इब्ने फतावा नहीं है वो। अच्छा मजमूल फतावा में मजमुआ नहीं है, अरबी में मजमुउल फतावा है, इब्ने फतावा नहीं। मेरे ख्याल से तुम कोई मेंटल आदमी हो, जो मैं कह रहा हूँ मानते नहीं हो अपनी वाला। अगर मैं हवाला भेजता हूँ, चलो मैं हवाला भेजता हूँ, नाम सही से नहीं ले पा रहे हो, बेवकूफों की तरह बात करते हो। इसमें मजमू फतावा है, मजमू, इसमें अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम नहीं है। इनको देखो इनको पढ़ना भी नहीं आता किताब का नाम इसमें अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम पढ़ रहे हो, अलिफ लाम। अच्छा मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा है मजमुआ फतावा, देखो मैं भेज रहा हूँ, तुमको मैं भेज रहा हूँ, ये पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। अलिफ लाम है इसमें, क्या बताओ जरा, तुम अपना व्हाट्सएप खोलो, अपना मजमुआ फतावा बोला, इब्नू नहीं बोला हुआ ये देखो इब्ने नहीं बोला, इब्ने मजमुआ फतावा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मैंने कहा है। तुम जब सुनाई तुमको कम देता है, मजमुआ इब्ने फतावा बोले हो। नहीं मजमुआ फतावा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का है चलो अब तुम कभी गलत फहमी निकाल लिया। चलो सुनो नहीं घबरा गए। देखो सुनो इसमें क्या लिखा है, जिल्द नंबर 5 पे सफा नंबर 103 पर क्या लिखा है, वज़ालिका अन्नल्लाह माना हकीकतुन व हुवा फौकल अर्शी हकीकतुन। ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हम हकीकत में भी हमारे साथ है और अर्श के ऊपर भी हमारे साथ है, वो भी हर जगह मानते हैं अल्लाह ताला को। अब बताओ इन पे क्या फतवा लगेगा, आप कुफ्र का फतवा लगाएंगे? कोई फतवा नहीं लगेगा कोई फतवा नहीं लगेगा। अल्लाह ताला हमारे साथ है, उसको उन्होंने साफ बताया, वहाँ लिखा है हकीकत में हमारे साथ है, हकीकत में हमारे साथ है और अर्श पर भी हमारे साथ है। हकीकत वज़ालिका अन्नल्लाह, वही जाती एतबार से जैसे वो उस अर्श पर मांगते हैं हकीकत, दोनों में अल्फाज हकीकत लिखा है, तो दोनों में जो भी अल्फाज लोगे तो दोनों पे वही मुराद लेना पड़ेगा। अगर सिफत मुराद लोगे तो उस अर्श पर भी सिफत मुराद लेना पड़ेगा कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अर्श पर भी सिफती एतबार से हैं। और दूसरी जगह खुद इब्ने तैमिया ने इसकी तरदीद किया है कि ये इस मुस्तवी इस्तवा का जो लफ्ज है ये हम उसको बयान नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसकी कैफियत बयान नहीं कर सकते। सुनो पारी, और जो अपने मन से इसकी कोई कैफियत या कोई माना लेगा वो गुमराह है। अब बताओ, हाँ वो गुमराह है। तो तुमने अपने तुमने अपने मन से माना लिया है, तुम गुमराह हो गए। तुमने कहा ना कि अल्लाह जात के एतबार से सिर्फ अर्श पर है, तो अपनी तरफ से तुमने माना लिया तुमने माना लिया है। नहीं तुमने माना, तुमने कहा है ना कि अल्लाह ताला जात के एतबार से सिर्फ अर्श पर है। ये देखो एक और किताब है निहायतुल अर्श, अपनी तरफ से लाया है। नहीं तुमने कहा है ना। अच्छा चलो क्या अकीदा है, वो लो क्या अकीदा है, अभी बता दो, चलो क्या अकीदा है अभी बता दो। सुब्हानहू व तआला अर्श पर है, जात के एतबार से तुमने कहा है सिर्फ अर्श पर है। फिर सिर्फ कह रहे हो आप। अच्छा अर्श पे के अलावा भी और कहीं मानते हो अल्लाह ताला को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जात के एतबार से अर्श पर है, ठीक है, सिर्फ ना जितना बोला आदमी सामने, यानी ये क्या मतलब है, आप अर्श के नहीं सुनो यार, जैसे मिला दिया मत मिलाने की कोशिश करो। अर्श के अलावा भी और कहीं मानते हो तो बताइए, अर्श पर ही महदूद मानते हो ना? के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह है, ये बात होती है। तो इल्म कुदरत अर्श पर नहीं है, इल्म कुदरत अर्श पर नहीं मानते? क्या चीज?
अल्लाह ताला का इल्म और कुदरत अर्श पर नहीं मानते, अर्श के अलावा मानते हो? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जात के एतबार से है अर्श पर, तो इल्म कुदरत के एतबार से नहीं है, तमाम सिफात भी है उसके साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जात के एतबार से मानते हो सिर्फ अर्श पर, यानी दूसरी जगह जात के एतबार से नहीं है। पागलों की वही तो बात मान रहे हो तुम। अर्श पर क्या अकीदा है? जात के एतबार से अल्लाह वहाँ अर्श पर रहेगा तो क्या सिफात से वो आली और खाली रहेगा? मुअत्तिला बन रहे हो क्या तुम? अरे यार मैं कह रहा हूँ तुम जात के एतबार से अर्श के अलावा और कहीं मानते हो अल्लाह की जात को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इल्म और सिफात के एतबार से, समझ रहे, वो तो अर्श पर भी है ना, वो तो अर्श पे भी है ना इल्म सिफात से, तो इल्म सिफात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जात के एतबार से सिर्फ अर्श पर है कि और भी कहीं है? जात के एतबार से और अपने सिफात के एतबार से अल्लाह अर्श पर है, और कहीं नहीं है ना। जात के एतबार से किसी और जगह नहीं है। हाँ तो वही हुआ ना कि आप सिर्फ अर्श पर मानते हैं, तो वही तो मैं कह रहा था, आप वही मान लिए। आप बता रहे हैं कि मैं गलत कह रहा था, वही आप खुद मान रहे हो। गलत नहीं, जो अल्फाज आप अपनी नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया। आपने कहा दूसरी जगह नहीं है, अर्श पर है जात के एतबार से, तो वहाँ आपने महदूद कर दिया ना, अपना हसर कर दिया ना, सिर्फ अर्श पर है। तो अर्श हसर जो होगा वो सिर्फ के लफ्ज आएगा ना कि और कुछ आएगा? तो आप उसको अब कब साबित करेंगे? पढ़ के आएंगे, बताइए असल किताब से। अभी बताया ना आपको, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का हवाला। नहीं, आपने कोई हवाले नहीं दिया। आपकी बात हम थोड़ी मानेंगे, जो आप बड़े बड़े मुहद्दिसीन की बात नहीं मानते, मुज्तहिदीन की बात नहीं मानते, तो हम आपकी बात कैसे मानेंगे? कुरान की बात भी नहीं मानते आप? कुरान की बात तो आप नहीं मानते, हम थोड़ी। कुरान में तो आप तहरीफ कर रहे हो, कुरान में अपनी तरफ से अपना माना ठोक रहे हो। कुरान में आप लोग तारीफ किए, आप तारीफ करें आप। नहीं, अभी कुरान में देख रहा हूँ आपने तारीफ किया। जात और सिर्फ का लफ्ज नहीं है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर जात के एतबार से है। ये कौन से लुगत में है, जरा हमें बताइए वो लुगत। सलफ की तशरीह पर मौजूद है, वो सलफ की तशरीहात हवा में तो नहीं लटक रही है, वो किताब में होगी ना, वो किताब हमको दीजिए। बस हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देंगे, किसने कब देंगे? हमसे पहले आप लोग रहते हैं। अरे यार इतना बोंगी मत मारो, करते हैं, इतना बोंगी मत मारो, कुछ नहीं हवाले से बात करते। अरे तुम क्या हो यार, तुम तो अभी 4 दिन के अंग्रेज के बाद की पैदावार हो, बिला मतलब के चीज़ कर रहे हो। सारे उलमा मुहद्दिसीन तो हमारे सब। तुम क्या है? तुम्हारे अकाबिर ने तो उलमाए आनाफ से इल्म दीन सीखा है, कुरान हदीस सीखा है। तुम्हारी क्या हैसियत है? बेमतलब है। तुम्हारे सारे अकाबिर ने, सुनो, तुम्हारे सारे अकाबिर ने हमारे उलमा अहनाफ से कुरान और हदीस सीखा है। तुम्हारे क्या थे? कुछ भी नहीं थे, जानते थे। अंग्रेजों ने खड़ा करके तुम्हारा नाम रजिस्टर अहले हदीस लिख दिया, वही तख्ती गले में लटका के अभी तक इधर उधर डंका बजा रहे हो। बेमतलब मत खड़ाओ, मत खड़ाओ। देखो तुम्हारी आपके दीन धर्म को छोड़ के क्यों आ रहे हैं? कुछ तो खूबियां हैं। कौन तुम अपने कौन तुम्हारे यहाँ से? सुनो, कोई नहीं। सुनो यार, तुम्हारे लोग मुनकिरीन हदीस हो रहे हैं, कादियानी हो रहे हैं, मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर हो रहे हैं। सुनो, अरे यार बेमतलब वाली बात। किताब लिया, ये गुमराहियां तो आप ये इस पे मत जाइए, नहीं तो अभी सुनो, देखो ये बंदा भाग गया, ये बंदा भाग गया, ये बंदा भाग गया, ये बंदा भाग गया, ये मौजू से भाग गया। देखो मौजू से भाग गया, आपकी किताब है, पागल हो गया, आपकी किताब है ना? बंदा पागल हो गया। तुम इतने डरे हुए हो, एक मौजू पे बात करो, इधर उधर मत बात से उसको मजबूत कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। इधर उधर बात मत करो। तुम क्या सब लोग करोगे?
तुम मगलूब क्या करोगे, तुमको आता ही नहीं कुछ है। अभी एक हवाला नहीं दिया अपने अकायद पर, और तुमने कुरान पर झूठ बोला, कुरान पे झूठ बोला। कौन सा एक भी हवाला नहीं दिया, एक भी हवाला नहीं दिया। मैंने देखो तुम्हारे और सब पे 2 हवाले, 1 हवाला भेज दिया, अब तुमने एक भी हवाला नहीं दिया हुआ है वहाँ। पूरे प्लान के साथ तुम बात कर रहे हो। नहीं, तुम मुझे कभी भी फोन करो मुझे। अरे अल्लामा इब्न कय्यूम को बगैर हवाले का मान लेगा। तुमने बक दिया, हवाला हो गया, बकवास कर दिया, हवाला हो गया। हवाला ऐसा नहीं होता है। बकवास देखो, बकवास करने से हवाला नहीं होता है। ऐसा तुमने बक दिया, हवाला नहीं हो गया। बकने से हवाला नहीं माना जाता ही है। हाँ, हजरत हवाला नहीं है। क्या मैंने कुछ ऐसा लिखित शक्ल में नहीं दिया, मैंने भेजा है ना। क्या भेजा? खोलो अपना व्हाट्सएप, अपना व्हाट्सएप खोलो, मैंने भेज दिया हूँ। अपना व्हाट्सएप खोलो देखो कि भेजा हूँ कि नहीं भेजा हूँ। हाँ, आपको भी पहुँच जाएगा। हाँ, फिक्र मत करें इसकी। हाँ, ठीक है। जब तुम्हारे पास इतनी हैसियत हो जाए और इल्मी हैसियत की हासिल हवाले से बात करना, तब हमसे बात करना। हमारी कोई हैसियत नहीं, इल्मी हैसियत नहीं है। वो समझ में, वो हनीफा के नाती साहब, आप खुद ये बताओ। देखो बदतमीजी करने लगे अंग्रेज, और ले लूं असल किताब का हवाला लाओ तो दे पाओगे। अंग्रेज के अंधे मुकल्लिद साहब, ये इधर उधर की बात मत करो, हवाले की बात करो। अगर तुम्हारे पास नहीं, अंधे मुकल्लिद हो तुम, अंधे मुकल्लिद। अंग्रेज को अपना आका बना के इधर उधर, ठीक है। इतनी समझ में नहीं आती है। तो मैंने भी तुमसे कहा ना कि भाई तुम टाइम ले लो, तो क्यों बबक कर रहे हो? टाइम ले लो, बात खत्म हो जाओ। कौन सा टाइम? टाइम बताओ, टाइम बताओ, सुनो यार बात को। टाइम बताओ, कितना टाइम तुमको चाहिए, मैं उस वक्त फोन करूंगा। अभी 2-3 लोगों के हवाले मैंने दिए हैं, एक भी हवाला नहीं। वो तुम देखो, हवाला लेता हूँ, किसी का बड़बड़ करके हवाला हम नहीं मानते। तुम असल किताब जब भेजोगे उसको हम असल किताब अरबी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उर्दू किताब का सहारा लेने वाले नहीं। अरे अभी तो उर्दू किताब नहीं पढ़ रहा था, मजमुआ बोलता हूँ तो तुम मतलब मजमुअल फतावा अलिफ लाम पढ़ रहा, अलिफ लाम उसमें है ही नहीं है। तुमको पढ़ना ही नहीं आता। अरे मजमुआ फतावा इब्ने तैमिया बोल रहा हूँ तो कहता नहीं मजमुअल होगा, मैं अलिफ लाम अरबी शब्द है, मजमू अल फतावा है। मजमू तो उसमें अलिफ लाम नहीं ये लिखा है। मजमुआ ये अरबी जो किताब है उसका मैं हवाला दे रहा हूँ, वो नाम आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अरे वो हाँ, तो जो मेरे पास है वो जो मेरे पास है वो सऊदी से छपी है, उसमें वैसे ही लिखा है। और दूसरी जगह जो लिखा है लिखा हुआ है ऐसे ही, अलिफ लाम नहीं है उसमें, अलिफ लाम नहीं है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। आप घामड़ किस्म के हो, आपको कुछ आता जाता नहीं है। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सारी किताबें मंगा के पता चलेगी। हाँ, बना करके, जैसे कि कुरान पर झूठ बोलना, ठीक है, ये काम करना, ये सब काम करना, ये होता है, ये तुम्हारा काम है। कुरान पर झूठ बोलना, देखो अभी से इतने गंधा गए आप लोग कि हिंदुओं ने थूका है आप लोगों के ऊपर। आप क्या बात करोगे आप, है ना? अरे तुम्हारे टेलीविजन चैनलों पर आपके, अरे यार इधर उधर की बात मत कर, ये तुमको थूक रहे हैं तब, ये तुमको थूक रहे हैं। इधर उधर की बात मत करो। ये अंग्रेज जो पैदा करके गए हैं ना, उसी को गुन गाओ, बातें कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर क्या है सबको मालूम है। गुमराही है, गुमराही के अलावा तुम्हारे अंदर क्या है? तुम तुम नमाज नहीं साबित कर सकते कुरान हदीस से, अपनी नमाज नहीं साबित कर सकते, अपनी नमाज नहीं साबित कर सकते कुरान हदीस से, ठीक है? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। बिल्कुल तू नहीं साबित कर सकता, तू अपनी नमाज, तू कुरान और हदीस के खिलाफ तेरा अमल है। कौन सी शरीयत जिसमें नमाज की तफसील भी मौजूद ना हो? गंवार किस्म के आदमी। कुरान में तो है, लेकिन तेरा अमल कुरान पे नहीं है ना। कुरान पे तेरा अमल नहीं है। कुरान हदीस में तो सब है तफसील नमाज की, लेकिन तुम्हारा अमल कुरान हदीस के खिलाफ है। वो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा जो दावा है, तुम्हारा ये भी कोई अमल अहले हदीस की नमाज का ऐसा बता जो हदीस से हट करके है ना? बेटा बाद में डूबेगा, उससे पहले जो है तेरी तरफ आ जाएंगे। कोई एक मसला, चलो बात हो जाए। मसला और मैं अभी सुन चल, तुम्हारी हैसियत नहीं है।
अरे सुन, पहले तू बता ना, पहले हदीस की नमाज अभी बताओ, एक मसला अभी बता बताओ, दो, हदीस से हट करके है बताओ। अच्छा अभी बता दूं, अपने आप को पलटा देंगे उससे इंशाल्लाह, तौबा कर देंगे। अभी बताऊं क्या कि बाद में बताओ? नहीं अभी बताओ, बाद में बताओ, आपके ऊपर है। नहीं आप बोलो, मुझे कोई वो नहीं है दिक्कत, मैं अभी बता सकता हूँ। तो बाद में नहीं करना कि मेरे पास किताब नहीं है, मैं बाद में हवाले दूंगा। ये नहीं, हाँ ये मत नहीं करना, ये मत करना। बता दिया, जैसे आपने बता दिया ऐसे मैंने भी बता दिया आपको, है ना। मैंने क्या बताया? मैं तो हवाला दे रहा हूँ। आप जो सुनो बात को यार, बड़बड़ ना करो। मैं जो बात कहूँगा, जो इबारत पढ़ूंगा, आप मुझसे उसका हवाला तुरंत मांग ले, मैं तुरंत दे दूंगा, ठीक है। और मैंने दिया भी है। आप जो हवाला पढ़ेंगे उसका असल किताब अगर हम मांगना चाहेंगे तो आपको तुरंत देना पड़ेगा। इस पे आपको बात करना है तो बोलो। अभी करूं बात की बात? अभी करो। अब बात कर रहे हो ना, तो करो ना बात। आप अभी क्या बोले कि नमाज के बारे में इनकी नमाजें गड़बड़ है, कोई एक हदीस बता दो जिसमें जो है नमाज की तफसील मौजूद हो। मैं वो आपको कह रहा हूँ, बाद में अमल नमाज में ऐसा बताओ जो हदीस से हट करके हो। हदीस और कुरान से हट करके है, वही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, बाद में ये मत कहना कि आपके पास हवाले नहीं है। मैं पहले वसूल बता रहा हूं। बात कर रहा है, असल किताब आपको भेजना पड़ेगा। हदीस हमारी जबान पर मौजूद है, ठीक है। नहीं तो नहीं, हवाला आपको देना पड़ेगा, इंशाल्लाह हवाला आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हम देंगे हवाला। हाँ, कभी भी हवाले के बगैर बात नहीं चलती है। हाँ स्कैन आप भेज देंगे जब हम मांगेंगे, ठीक है। बिल्कुल चलिए माशाल्लाह, एक बात हो गई। चलिए हम ये बात पूछते हैं कि इमाम अगर किरत करे तो मुक्तदी को क्या पढ़ना चाहिए? क्या चीज? इमाम अगर किरत कर रहा है नमाज में, मुक्तदी पीछे नमाज पढ़ता है ना, तो उसको कुछ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कुरान से कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए सुन लीजिए, इस पर पहले मैं हदीस पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आप बात। नहीं यार, आप पहले अपना मौक़िफ़ बताइए, फिर अपनी दलील दीजिए। इतना घबराए क्यों कर? अब नहीं आप घबराइए ना, पहले मौक़िफ़ पहले होता है, दलील बाद में होती है। अरे यार क्या बात है, घबरा गए, पगला गए, ये हो गया, वो हो गया, वो खिला गए। दलील खत्म करो, दलील बाद में देना, अपना मौक़िफ़ तो बताओ, अपना मौक़िफ़ तो बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज, अरे हदीस सुना रहा हूँ यार, कोई गीता नहीं पढ़ के बता रहा हूँ। अरे मौक़िफ़ तो बताओ कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कुरान से कुछ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हदीस आप नहीं सुन रहे हो मेरी बात को। अरे यार वो दलील तो आप बाद में देंगे ना। आप क्या कहते हो वो बताओ, आप क्या? हदीस को सुन लीजिए, वही हमारा मौक़िफ़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप भूल जाएंगे, है ना। और उसके बाद जब फलम्मा फरगा मिन सलाह, जब सलात से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, शायद तुम लोग इमाम के पीछे कुछ पढ़ रहे थे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, तो नबी ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा। ना कुछ करो, ना कुछ पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती है। पता क्या चला? सूरह फातिहा पढ़ना है इमाम के पीछे, और बकिया जो बातें होंगी, जो किरत होगी इमाम की, वहाँ खामोशी से सुनना, कितना पढ़ना। ये हमारा मौक़िफ़ मोहतरम। अच्छा आपका ये मौक़िफ़ हो गया कि इमाम जब किरत करे तो मुक्तदी को सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, यही हो गया ना? बिल्कुल सूरह फातिहा पढ़ना है। और सूरह फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह किरत की शुरुआत होती है, उसके साथ साथ वो पढ़ना है। सूरह फातिहा के अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा, ठीक है। सूरह फातिहा के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ना, कि और कुछ पढ़ना उसके साथ? हाँ, क़याम की सूरत में, क़याम की हालत में, ठीक है। हाँ क़याम की बात, जब इमाम किरत कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, रुकू की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल चलिए, तो सूरह फातिहा से पढ़ेगा, उसके अलावा कोई सूरह नहीं पढ़ेगा। जी चलिए ठीक है। आप ये हदीस कहाँ, कौन से किताब की है? सुनन अबी दाऊद के अंदर है, सुनन तिर्मिज़ी के अंदर है। शुएब अर्नाऊत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। किसने? शुएब अर्नाऊत, मोहम्मद इब्न शुएब अर्नाऊत रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। अच्छा ये सुनिए, वो हमारे आलिम नहीं है शुएब अर्नाऊत, ठीक है। आप सुनिए ये बात, ये हदीस ज़ईफ है। ये सुनन इब्ने माजा में, ये सुनन अबू दाऊद में है, सुनन तिर्मिज़ी में है, देकर किताब में है, सुनन नसई में भी है। इसमें देखो हदसना अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद, ठीक है।
اس میں کون سے راوی ہیں؟ ایک تو محمد بن اسحاق راوی ہیں، ایک مقہول راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ مقہول جو ہے مدلس راوی ہے، اور اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مدلس راوی ہوتا ہے تو اس کی ان سی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ محمد بن اسحاق بھی مدلس راوی ہیں، اور ان پر بے شمار جرح ہے۔ امام مالک اور دیگر محدثین نے ان کو دجال، کذاب، جھوٹا کہا ہے۔ امام احمد بن کہتے ہیں اس کی حدیثوں سے حجت نہیں لی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس ضعیف، علامہ البانی آپ کے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، تو آپ اس ضعیف اور موضوع جس پر جھوٹ الزام لگا ہے اس کی روایت آپ کے نزدیک حجت ہے؟ بتائیے۔ حجت نہیں، دیکھیے سنیے پہلے، آپ آپ شعیب ارناؤت کو جانتے ہیں، کوئی محقق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آنکھ بند کر کے اس کی تحسین فرمائی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیے آپ بند کر کے امام مالک، یعنی سنیے اچھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث سے حجت نہیں لی جا سکتی۔ امام ذہبی نے اس پر جرح کی ہے۔ 5 اسماء الرجال کے ائمہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ شعیب ارناؤت کس حدیث میں، کس کی حدیث میں انہوں نے اس کو حسن کہا ہے؟ آپ یہ پہلے میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں کچھ دیر کے بعد، مجھے موبائل ابھی بھیجیے، نہیں ابھی بھیجیے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ چلیے آپ نے کہا اتنے بڑے بڑے محدثین نے اس کو دجال، کذاب اور جھوٹا قرار دیا ہے، اس کے بعد شعیب ارناؤت کی بات مانیں گے؟ سلف کو یہاں آپ بھول گئے، ماشاءاللہ، یہ ہے آپ کی۔ سلف کو نہیں بھول گئے، جنہوں نے جھوٹا کذاب کہا اس کا اسکین آپ بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بے شک، ہاں یہ قاعدے کی بات، یہ آپ نے قاعدے کی بات کہی ہے، ہم ابھی کی بات ہو رہی ہے، نہیں ہاں حوالے آپ نے مانگا، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا آپ ضعیف روایتیں جو کہ انتہائی درجے کی مجروح ہے، جس میں 2 راوی ضعیف ہیں اور مدلس بھی ہیں، علماء حدیث کے روح سے بھی وہ 2 مدلس ہیں، ان کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، اور ایک راوی پر تو جھوٹا وغیرہ کا الزام لگا ہے۔ دیکھو ابن معین کہتے ہیں لیسا بے حجہ، کہ وہ حجت نہیں ہے۔ نسائی کہتے ہیں لیسا بے قوی، وہ قوی نہیں ہے۔ دار قطنی کہتے ہیں لا یحتج بہ، اس کی حدیثوں سے احتجاج نہیں ہوگا۔ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر جو بڑے محدث ہیں، رمیہ بالقدر وکانا ابعد الناس منہ، اس پر وہ قدریہ فرقے کا تھا اور لوگ اس سے دور ہو گئے تھے۔ اور امام ابو داؤد کہتے ہیں قدریون معتزلیون، وہ قدریہ فرقے کا معتزلی آدمی تھا۔ وقال سلمان تیمی کذابون، وہ کذاب تھا۔ اور حسان بن عرمہ کہتے ہیں کذابون و کذاب تھا۔ امام مالک کہتے ہیں کذابون دجال و کذاب تھا۔ بالکل بھیج دیتا ہوں، پوری جرا پڑھ کے، ہاں پھر پوری بھیج دیتا ہوں۔ وقال ابو داؤد طیالسی حدثنی باج اصحابنا قال سمیت ابن اسحاق یقول حدثنی ثقۃ فقیل له من قال یعقوب الیہودی، یعنی وہ عیدیوں سے روایتیں ہم کو بتاتا تھا۔ اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب سے روایتیں کرتا تھا۔ وقال احمد ہوا کثیر التدلیس، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ بہت زیادہ مدلس تھا، ٹھیک ہے، کس سے؟ مجہول اور ضعیف راویوں سے حدیثیں بیان کرتا تھا، مگر ان کا نام نہیں بتاتا تھا، تدلیس کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سب میزان الاعتدال میں ہے، میں ابھی بھیج دیتا ہوں۔ اور اسی طرح علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اما محمد بن اسحاق فمجروح شہد بانہ کذاب مالک و سلیمان تیمی وہب بن خالد وحشام بن عروہ وحیہ بن سعید القطان وقال ابن مدینی یحدث عن المجہولین بحدیث باطلہ، کہتے ہیں اسحاق محمد بن اسحاق جو ہے وہ مجروح ہے، اس کے جھوٹے ہونے کی 5 لوگوں نے گواہی دی ہے، جسے امام مالک، سلیمان تیمی، وہب بن خالد، حشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید القطان جو امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ اور یحییٰ بن مدینی کہتے ہیں کہ وہ مجہولین سے، یعنی جو انجان لوگوں سے جھوٹ باطل حدیثیں بیان کرتا تھا۔ تو اب بتائیے، یہ تو آپ کے باطل ثابت ہو گئے، ہاں بتائیے اب کوئی دوسری دلیل دیجیے۔ اب ذرا دیکھیں وہی دلیل سنیے آپ تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے، اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن کے اندر جو ابو داؤد کی شرح ہے
सुनने अबी दाऊद की शरह है, सफ़ा 205 में कहा है उन्होंने, हादल हदीस नस्सुन बिअन्ना क़िराअत फ़ातिहतिल किताबी अला मन सल्ला खल्फ़ल इमामी सवाउन जहरल इमामु बिल क़िराअति औ ख़ाफ़त बिहा व इस्नादुहु जय्यदुन ला ताना फ़ीह। यानी ये हदीस साफ और वाज़ेह है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, खा वो नमाज जहरी हो या सिर्री। और इस हदीस की सनद बिल्कुल उम्दा है, इस पर कोई जर्ह नहीं है। और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अद्दराया की तखरीज अहादीसिल हिदाया सफ़ा 164 में बताते हैं, वो अखरजहु अबू दाऊद बिइस्नादिन, ये हदीस अबू दाऊद में है, इसके रावी सिक़ा हैं। सब रुक जाइए, पहले सुन लीजिए, बहुत सुना है आपने। के अंदर नंबर 1 सफ़ा 231 में फरमाते हैं, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, दारक़ुतनी, इब्ने हिब्बान, हाकिम और बैहक़ी, इन सब ने इस हदीस को सही कहा। सुनिए थोड़ा सा तो बोल लेने दीजिए हज़रत। नहीं, मैं असल किताब से बोली है, असल किताब से। ये गलत हवाले है, आपके गलत हवाले की चीज है, आपके गलत हवाले हैं, आपके गलत हवाले। नहीं, गलत हवाले सुना रहे हैं, गलत हवाले लीजिए, फिर हवाला भेज देते। नहीं, हवाला मैंने भेज दिया, आप भी भेजिए। अरे भाई इतना बात हो रही है। नहीं, आपने वसूल पहले, नहीं वसूल पहले ही बोला था कि आप मैं हवाला नहीं यार, सुनो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत हवाले नहीं, गलत जनाब, गलत हवाले नहीं, गलत हवाले नहीं, गलत हवाले नहीं, गलत बात है। फिर उसके बाद हवाला ले लीजिए। हाँ तो हवाले दीजिए, चलिए पढ़ के हवाले दीजिए। वक़द सबता बिहदीस उबादा व हुवा हदीस सहीह सहीह सनदी अमरहु बिक़िराअतिल फ़ातिहति लिल मुक़्तदी। ये अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह शरह वक़ाया में मालूम है, शरह वक़ाया की शरह अपने वालिम की किताब पढ़ रहे हो, मुझे मालूम है, आपके पास कोई हवाला नहीं है। एक एतराज किया जाता है कि देखो सनद में मोहम्मद इब्ने इसहाक़ रावी है। देखो हाँ, ये अपने गई है। आप हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब किरात खल्फुल इमाम की किरात आप पढ़ रहे हैं, वो किसकी किताब है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? नहीं, समझ गया। सुन लीजिए, पहले तो सुन तो लीजिए आप अपने घर की गवाहियत ले लीजिए। मुकल्लिद है तो कम से कम देख कर लीजिए। इमाम इब्न हम्माम फतहुल कदीर शरह हिदाया सफ़ा 301 जिल्द नंबर 1 में लिखते हैं, इमाम इब्न इसहाक़ सिक़तुन ला शुबहत इंदना फी ज़ालिका वला इंद मुहक़्क़िक़िल मुहद्दिसीना, कि इमाम इब्न इसहाक़ सिक़ा है, उसके बारे में हमें और मुहक़्क़िक़ मुहद्दिसीन को कोई शुबहा नहीं है, ठीक है? अल्लामा लखनवी रहमतुल्लाह अलैह अस्साया के अंदर 372 सफ़ा जिल्द नंबर 1 में फरमाते हैं, इब्न इसहाक़ तौसीक़ के मुताबिक इब्न इसहाक़ सिक़ा हैं। और अल्लामा सलामुल्लाह हनफी मुअत्ता की शरह में लिखते हैं इब्न इसहाक़ सिक़ा है, इसलिए इसकी हदीस के सही होने में कोई शक नहीं है। नीज़ इब्न इसहाक़ अकेला नहीं है, इसके साथ ज़ैद इब्न वाक़िद भी उस हदीस का रावी है। आला हज़रत तो भी सुनो, ये जुबैर अली जही की किताब, सुनो ना, जुबैर अली जही की किताब वाक़िद भी इस हदीस का रावी है, जिसकी हदीस दारक़ुतनी सफ़ा 319 में मौजूद है, ठीक है? जुबैर अली जही के अंदर अपने मतलब में वाज़ेह है, मुक़्तदी को तमाम के पीछे जरूर सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, ठीक है? ये जुबैर अली जही के अंधे मुकल्लिद है, उसी की किताब पढ़ रहे हैं, इनके पास हवाला असल नहीं है। नहीं तो भेजिए हवाला, भेजिए, मैंने आपको भेजा, आप भी भेजिए, मैंने आपको हवाला भेज दिया, आप भी भेजिए, मैंने हवाला भेजा ना। नहीं, हवाला भेज देंगे, तसल्ली हो जाए। ऐसा नहीं भेज देंगे। देखो ये आदमी इतने बड़े झूठे भी हैं। अभी पहले ही शर्त रख दी गई थी कि मैं हवाला मांगेंगे तो आप देंगे, आप मांगेंगे तो मैं दूंगा। हवाला दें, तो फिर शर्त क्यों रखा था? शर्त क्यों रखा था? शर्त क्यों रखा था? यानी तुम्हारे पास जुबैर अली जही के अंधे तकलीफ करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ये तो हमको समझ में आ गया। नहीं, अंधे मुकल्लिद है जुबैर अली जही के, ये जनाब अंधे मुकल्लिद हैं जुबैर अली जही के, ये उसकी किताबों से नकल कर करके वो पढ़ रहे हैं, जो उसने सिखा दिया ये मान लिया, ये मान लिया, समझ में आ गया, ये मान गया। हाँ
देखो बदतमीज हो गया। हाँ, ये इसने वक्त दिया कि ये मोहम्मद राशिदी की अपने गैर मुकल्लिद आलिम का ये देखो इसने खुद कबूल कर लिया। देखो कि असल किताब से नहीं पढ़ रहा है, ये मुकल्लिद है अपने आलिम का। और जब इसके आलिम का जब इसके आलिम सुनो जब इसके आलिम की कोई सुनो जब इसके आलिम की कोई किताब हवाला दो तो कहेगा नहीं वो हमारे नजदीक मोतबर नहीं है, हम उसको क्या है उसको सुनो तुमने कहा भेजा है अभी ये तो नहीं भेजा, वो भी अपने को नहीं मालूम है। मैं तो भेजा बाखुदा मैंने भेज दिया, बोलो ना मैंने भेजा जो कुछ कहा है उसका हवाला मैं दूंगा नहीं अभी तो, तभी तो हम जवाब देंगे तुमने झूठ जो बोला है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी भेज ना भेज। तुमने अपने आलिम की किताब पढ़ रहा है मोहम्मद बदियुद्दीन की, जो लिखा है फातिहा खल्फल इमाम के ताल्लुक से, उसकी किताब पढ़ रहा है। हाँ, जो छपी है जमीयत अहले हदीस सिंध से, मेरे ख्याल से कहाँ से छपी है? हाँ, और सब दावा कर रहे तो तुम्हारे लिए हलाल सब जायज। अरे यार तुमने अभी कबूल किया है ना, आपको बदियुद्दीन राशिदी की किताब पढ़ा है। उस पर मैंने बोला क्या लगा रहा था। अच्छा कौन सी किताब से पढ़ रहा है? कौन सी किताब? नहीं झूठा आदमी है तू यार, झूठ बोलता है, झूठा तो है ही है। कौन सी किताब से पढ़ रहा है? मुझ पर फिट कर रहे हो यार, तुमको शर्म नहीं आती है? शर्म तुमको नहीं आती है? बेदर हवाले के बड़बड़ कर रहे हो, झूठ बात यहाँ बोल रहे। जब कुरान पे झूठ बोले, अभी हदीस पे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। इनको तुमको ये बताया जाता है कि कुरान और हदीस कहाँ दिया हवाला? हवाला किधर दिया? किधर हवाला? कहाँ दिया हवाला? कहाँ हवाला? कहाँ गया हवाला? कहाँ है? ऐसा तुमने वक्त दिया जुबानी हवाला हो क्या? ऐसे तो कोई भी वक्त देगा तो हवाला हो जाएगा, बकने से हवाला नहीं होता। ये हवाला ये इतना बड़ा देखो झूठा साबित नहीं हो गया। शुरू में इसने खुद कबूल किया था तुमने कि शुरू में ही कि उसूल बन गया था कि जब तुम हवाला पढ़ोगे हम मांगेंगे तो दोगे। ये बोले हाँ तुरंत देंगे, ये तुरंत देंगे। नाम तक नहीं बताया है ना? तुमने पूछा तुमने भी तो नहीं बताया। महबूब कहेगा तुमने ये जयब रावी झूठे रावी से इसका अमल साबित है, सही हदीस से कुरान और सही हदीस से इसका अमल साबित नहीं है। कुरान और सही हदीस से इसका अमल साबित नहीं है। इसने झूठ हदीस पर भी झूठ बोला और उलमा पर भी झूठ बोला बेचारे ने। इसका अमल वो हदीस सनद वो हदीस ज़ईफ है। मैं उसको जो है हसन और सही करार दिया है। कौन से में? अच्छा उसको जो है कहा है कि शर्त में कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे तो तुम्हारे वक्त देने से नहीं होता। हाँ, जैसे तुमने कह दिया हो गया, उसका हवाला देना पड़ेगा। ठीक है, इसका हवाला अभी तक तूने बका ही है। तो तुमने जो बका है, और इमाम तिरमिजी की बात कर रहे, तुम्हारे उलमा ने उसूल लिखा है कि इमाम तिरमिजी किसी हदीस को हसन सही कहने से वो हसन सही नहीं हो जाती। ये तुम्हारे उलमा का उसूल है और तुम अपने उलमा के उसूल को नहीं मानते क्योंकि वो मुतसाहिल है। ये देखो इमाम तिरमिजी के अलावा कितनों की बात मैं अरे बातें करने, अरे तो की बात की है। अरे तो कहाँ दिया, कहाँ पर, कहाँ दिया हवाला दिया? क्या हवाला दिया? कुछ कहा है वो बक्का ही है ना? मैंने हवाला दिया ना, हवाला दिया तेरे व्हाट्सएप पे हवाला दिया। खोल तू अपना व्हाट्सएप, पागल कहीं के खोल। अबे पागल आदमी, जब तेरे को मैं हवाला दिया हूँ तो इनकार कर रहा है और तू हवाला मुझे दे ही नहीं रहा है इतना। यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं साबित है। पता चल गया ना? पता है मौजूद तो उसको देखेंगे। पता चल गया? नहीं पता चल गया तुम्हारे पास खोखला है, कोई हवाले नहीं है। ये बेचारा अंधा मुकल्लिद है, किसी भी आलिम की किताब मान लेता है, अंधा मुकल्लिद है, मगर कुरान हदीस नहीं मानता। ये अंधा मुकल्लिद है। नहीं साबित हो गया तो उलमा राशिद और अपने बदियुद्दीन की किताब पढ़ के हवाले दे रहा है अपने उलमा की बात कर रहा था। हाँ, किसकी किताब पढ़ रहा है? तो 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 किसकी किताब है? किसकी किताब पढ़ रहा है? किसकी किताब पढ़ रहा है? अच्छा चलो मैं जुबैर अली जई की बात किसने किया?
तो चल किसकी पढ़ रहा है, चल बता दे, सही सच बता दे। बात किसने किया पहले ये बोल। हाँ मैंने किया, चल चल बता। किया ना, तो किस तू मुझे गलत साबित कर, किसकी पढ़ रहा है, किसकी पढ़ रहा है? बदरुद्दीन राष्ट्रीय की पढ़ रहा था मैं तुमको बताया। बदरुद्दीन राष्ट्रीय तो अभी मैंने कहा, अभी तो मैंने कहा बदरुद्दीन राष्ट्रीय की बात तो अभी मैंने कहा, तो क्यों झुटला दिया था? हाँ, इसका मतलब तो अंधा मुकल्लिद है बदरुद्दीन राष्ट्रीय का। ये बेचारा इसके पास नहीं ये देखो अपने घर की बोल रहा है, यानी बदरुद्दीन राष्ट्रीय का ये अंधा मुकल्लिद है, ये अंधा मुकल्लिद है। नहीं अंधा मुकल्लिद है, पहुंच जाएंगी। बदरुद्दीन राशिदी का तुमने अंधी तकलीद किया है, तुम्हारी तहकीक नहीं है, पता चल गया तुम एक अंधे मुकल्लिद हो, एक छोटे। नहीं तो मैं, हाँ बिल्कुल मैं अपनी तहकीक से पेश किया। तहकीक को तो अपनी तहकीक बता रहा है बेईमान। अरे बाप रे, इमाम जैबी की तहकीक तो मानी जाती है, इमाम जैबी की तहकीक तो मानी जाती है, इमाम जैबी। इसका ये मतलब हुआ तुम्हारे सारे मसलक के सब गए मुकल्लिद हो गए फिर सबके, तब तो तुमने खुद मान लिया तुम मुकल्लिद हो। यानी तुम्हारे जितने जुबैर अली जुबैर अली गैर का मुकल्लिद मतलब अंग्रेज का मुकल्लिद, समझे? उलमा मुहद्दिसीन को छोड़ के अंग्रेज के मुकल्लिद है, लेकिन अपना जायजा ले लिया करो। नहीं मैंने लिया, वो पता चल गया तुम बदियुद्दीन राज़ी के अंधे मुकल्लिद हो, बदियुद्दीन राज़ी के और तकलीद कर रहे हो। पता चल गया, उस पे बात करोगे? बार बार कह रहे हो अबुल हसन अशरी की बात कर रहे हो, उससे बात करें, इससे बात करोगे? तुम्हारी हैसियत नहीं है किसी भी मसले पे बात करे उसूल से। भाग जाओ, भाग जाओगे। वो इमाम आजम है तो उसूल अकायद में तुम यहाँ वहाँ क्यों मुँह मार रहे हो? तुम्हारी पूरी जमात उसूल सुनो, सुनो सुनो, अरे सुनेगा पागल, पागल ओ पागल, में क्या गड़बड़ी थी, क्या गलतियाँ थी। माशाअल्लाह तुमने सवाल किया। अरे खामोश तो रहेगा, मुझसे सवाल तो ले, हम हनफी हैं, सवाल का जवाब तो ले, सवाल का जवाब तो ले। तुमने जो सवाल किया है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अकीदे में क्यों नहीं माने, अबुल हसन अशरी मातुरीदी के क्यों मान रहे, यही सवाल है ना तुम्हारा? माशाअल्लाह। तो सुनिए, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखा है कि जो, पहले पूरी बात सुन लेना ठीक है, उसके बाद जवाब देता हूँ, कि जो उनकी तरफ फिका मंसूब है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह या इमाम शाफी रहमतुल्लाह या इमाम मालिक या इमाम अम्बल अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह में, तो वो मंसूब इसलिए है कि उनकी तरफ कि उन्होंने वो फिका कुरान और हदीस से अखज किया है, यानी अपनी तरफ से नहीं लिया है, ठीक है। वो उनकी वजह से वो मुदव्वन हुआ। जैसे इमाम बुखारी ने हदीस को नकल करके इमाम बुखारी शरीफ में, तो कोई भी हवाला लेता तो बोलते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, इसका ये मतलब नहीं है वो बुखारी शरीफ अपने घर से लेके आए हैं, ठीक है। वो उसका मतलब यह है कि उन्होंने उसको मुदव्वन किया है, ना कि वो अपने घर से लेके आए। और जो इमाम अशरी या इमाम मातुरीदी की बात कर रहे हो, तो उन्होंने अकायद को मुरत्तब किया है। उनके ज़माने में मुतज़िला और दूसरे बातिल फिरके बहुत ज़्यादा थे, तो उनके ज़माने में ये मुंजबित हुआ है अकायद को, उन्होंने उसको मुरत्तब और मुदव्वन किया है, ना कि वो अपने घर से अकीदा बनाए हैं, इसलिए वो मंसूब किया जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ज़माने में वो मुदव्वन नहीं हुआ था, तो मुदव्वन के एतबार से माना जाता है। बे घामर, तुम लोग को इल्म कहाँ होता है? हमारे पास आके इल्म हासिल करते हो तब तुमको पता चलता है। सवाल ये बेटा 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 तेरी उम्र कितनी है बेटा? रहमतुल्लाह के जमाने में क्या चीज मुदव्वन थी? फिर तुमने शुरू मसाइल में उनको इमाम क्यों माना, और इमाम आजम फिर क्यों कहते हो जब अकीदे में दूसरे यार लोग मिल गए, अकीदे में दूसरे मिल गए, सिलसिले में दूसरे मिल गए, सुनोगा तसव्वुफ में कौन है? बस ये भी जवाब ले, ये भी जवाब ले, ये भी जवाब ले, ये भी जवाब ले। खामोश 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 खामोश। हाँ, और सिलसिले और सलूक के अंदर, हाँ बिल्कुल। अरे रुकेगा बात को, बड़बड़ तेरे अंदर जाहिलियत बहुत है, मैं समझ गया तुम्हारा जो एतराज है। सुनो सुनो,
تمہارا جو اعتراض ہے کہ جب ان کو فوری مسائل میں مانتے ہیں تو تصوف میں کیوں چار ہو گئے، یہ ہے نا؟ ہاں تو تصوف الگ چیز ہے اور فقہ الگ چیز ہے۔ تصوف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے سوال جواب ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے احسان کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے کہا احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مقام نہ حاصل ہو تو اس طرح تم تصور میں رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو اس احسان کو لے کے وہ تصوف ہے، اس کو وہ تعلیم دی جاتی ہے، وہ چیزیں تصوف کا چیز الگ ہے، اس کو کہ عبادت جو ہے صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے ہو جائے، اور فقہ کا مسئلہ ہے وہ عبادت کا طریقہ بتائیں گے کہ عبادت اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور تصوف میں وہ بتاتے ہیں کہ عبادت جو ہے بتا کے عملی طور پر کہ اس طریقے سے عبادت ہو جائے، تو وہ الگ ہے، اس کو فرقہ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، سنو پوری بات نہیں پوری بات سنو، ابھی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پوری بات سنو۔ ہاں، جیسے کہ محدثین میں حدیث کی اصطلاح الگ الگ ہے، اصول حدیث کی، ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث سے الگ چیزیں ہیں، وہ ایک تصریح چیزیں ہیں، اسی میں سے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ صحیح حدیث کی الگ پہچان ہے، غلط حدیث کی الگ پہچان ہے، اس کے بیچ میں جو حدیث ضعیف کی کئی قسمیں ہیں اس کی الگ پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اب بولو تم، میں اس کے بعد دوسری مثال دیتا ہوں تم کو، بولو۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیے، ہاں بتاؤ، ہے نا، احسان کی تعریف کیا، ٹھیک ہے، بالکل، احسان کو، وہ احسان والی حدیث کو مد نظر رکھ کر کے آپ نے چار جو ہے سلسلے بنا لیے، ٹھیک ہے۔ تو احسان کا وہ معنی مطلب صحابہ نے بھی سمجھا تھا کہ آپ لوگوں نے سمجھا عبد القادر جیلانی کے زمانے میں؟ یہ ذرا بتائیں آپ، یہ چاروں کی نسبتیں جو کی جاتی ہیں یہ کیوں ہے؟ اگر احسان کا مطلب یہی ہے جو چاروں نے سمجھا اور بعد والوں نے ان چاروں کو اپنا پیشوا بنا لیا تصوف کے اندر، تو تصوف کا یہی معنی وہ مفہوم کیا صحابہ نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، ائمہ اربعہ نے سمجھا تھا؟ ذرا یہ بتائیں اس کے بارے میں۔ صحابہ کرام نے کیوں نہیں سمجھا ہوگا؟ ہاں سمجھا ہوگا نہیں، کیوں نہیں ہے تو بالکل کے ساتھ بتاؤ۔ ہم کو تو حدیث سے بتایا، حدیث سے بتایا، چشتی تھے، نقشبندی تھے، سہروردی تھے، کون تھے؟ اچھا یہ بتائیے، ہاں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال، ابھی پہلے جواب دے دو، آگے بڑھو اس کے بعد۔ تو بتا تو رہا ہوں یار، آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو، آپ کچھ بتا آپ اتنا گھبرائے اور ہلبلانے کیوں ہیں؟ ایسا آدمی جیسے کانپ رہا ہے، ہلبلا رہے ہو، یعنی گھبرا کیوں رہے ہو اتنا؟ پھر وہی بات کر رہے ہو آپ۔ اچھا ایک بات بتائیے، سنیے، ایسا بتایا جاتا کیا؟ تم نہیں ہڑبڑا رہے ہو بہت زیادہ، پاگل نہیں کہا میرے بھائی، سب سے پہلے شروعات آپ نے کی ہے۔ تم تو بدتمیز آدمی قسم کے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بدتمیز بھی نہیں کہا۔ بالکل بالکل، آپ بدتمیز ہو، کئی بار کہے ہو۔ ارے سنیے بات کو یار، کہہ رہے یار پاگل آدمی، سنو یہ تمہارا جو سوال ہے، سنو یار بات کو، تم نے جو سوال کیا ہے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے امام بخاری ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی حدیث کو بیان کرنے میں سند کی شرائط رکھے ہیں، سند کی شرائط تو تم کو معلوم بھی نہیں ہوگی انہوں نے کیا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جیسے آپ کو نہیں معلوم تھی کہ پوری بات کھول دیا پول۔ اچھا چلو بتا دو ریکارڈنگ کر رہے ہو، اپنے اتباع کو، پیروکاروں کو سنانا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی جواب ادھر ادھر سے آپ لاؤ۔ نہیں، امام مسلم نے بہت سخت شرطیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور دو شرطیں اس میں خاص طور سے ذکر ہے، جبکہ امام مسلم نے امام بخاری کی ایک شرط کو نہیں مانا، بلکہ اس شرط کو، سنو نا پوری بات، اس شرط کو انہوں نے اس پر بہت بڑی تنقید بھی کی ہے امام بخاری پر، امام مسلم نے۔ تو اس کے بعد جو امام ابو داؤد یا امام ترمذی یا امام نسائی یا امام ابن ماجہ، ان لوگ جب آئے تو انہوں نے اپنے حساب سے دوسری شرطیں رکھی، ٹھیک ہے، اس کو حدیث کو لینے میں۔ تو اگر کوئی یہ پوچھے تم سے کہ بھائی کوئی منکرین حدیث کوئی پوچھے، جیسے کہ تمہارے یہاں زیادہ منکرین حدیث لوگ ہوتے ہیں، کہ بھائی تم صحابہ حدیث سے یا صحابہ تابعین سے یہ بتا دو
کہ یہ جو شروط رکھے ہیں یہ وہ کیا ان لوگوں کو دین نہیں معلوم تھا؟ وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا کیا جواب دو گے بتاؤ؟ تو بولو گے تب انکار کر دو گے بھائی وہاں ثابت نہیں تو انکار کر دو، آپ بتاؤ۔ نہیں وہی چیز ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ نہیں دیکھو پہلے آپ ایک جواب تو دیتے نہیں ہو، دوسرا سوال پیدا کر لیتے ہو۔ میں نے نہیں جواب دیا، اسی میں نقش بندی بیعت لے رہے ہو آپ لوگ۔ وہ تو ایک منسوب ہے، وہ ایک تو منسوب ہے، جیسے آپ نے آپ کو سمجھایا۔ ارے سنو نا یار، جب میں بولوں چپ رہا کر، تم نے اعتراض کیا، ختم اعتراض کیا۔ اچھا امام اعظم پر اعتراض ہے؟ امام اعظم پر اعتراض ہے؟ امام اعظم پر اعتراض ہے کہ امام ابو حنیفہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں امام اعظم سنو امام اعظم کہنے پر ارے یار نہیں، وہ الگ لائن ہے، وہ الگ لائن ہے جناب۔ وہ جو سہر وردی ہیں، سنو، جو سہر وردی ہیں یا کوئی نسبندی ہے وہ بھی حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں یا شافعی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، فقہ میں وہ انہی کے پابند ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ فقہ کے انہی، بس وہ ان کا کام ہے کہ ایسے وہ لوگ تربیت کرتے ہیں کہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا لوگوں پہ جو شاق گزرتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، دین پہ چلنا، سنت کی چیز پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، جو کہ تمہارے یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے یہاں جو وہ چیز نہیں ہے، تو وہ الگ فرقہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی بولے بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، یہ الگ الگ کیوں ہے؟ ارے بھائی وہ سب حدیث ہے، وہ نہیں بولیں گے کتاب الگ الگ، کتاب نام الگ الگ ہے تو حدیث بھی الگ الگ ہو گئی۔ آسان بنا دیے مولانا نہیں، ان کے پیچھے کل کر کے کہ پورے دین کو بدل دیا آپ نے، یہ تم نے بدل دیا۔ کرنا ضروری ہے، واجب اب ہے۔ دیکھو کہاں سے بھاگ رہے ہیں، اب کہاں سے کہاں بھاگ رہے ہیں، ابھی اس سے بھی تمہاری پٹائی ہوگی، اس میں بھی آپ کی پٹائی ہوگی، آپ جہاں بھاگو گے ہم آپ کی پٹائی کریں گے، سمجھے؟ آپ کا پالا ہمارے جیسے لوگ سے نہیں پڑا تھا، اس لیے آپ بہت بک رہے تھے ادھر ادھر، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے جیسے لوگ سے جب پڑے گا نا تب آپ کی پٹائی ہوگی، ہر جگہ سے پٹائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ ہاں آپ کے ساتھی لوگ جب اٹھا دیتے ہیں، بار بار مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، ہمارے جیسا ابھی تمہارے پاس کوئی کسی سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے تمہاری ساری ایکڑی ہم نکال دیں گے، تمہاری ساری ایکڑی ہم نکال دیں گے بھائی۔ آپ کس کھیت میں بولی؟ ہم جب اعتراض کریں گے نا تو تم کو بھاگے راستہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ بھاگو کے راستہ نہیں ملے گا۔ ابھی تو بھاگ رہے ہو، ابھی تو آپ اپنی نماز ثابت نہیں کر پائے قرآن حدیث سے، قرآن حدیث کا نام لیتے اپنا عمل قرآن حدیث کے مطابق نہیں ثابت کر پائے۔ نقش بندی شہر ورزی کے پیچھے دوڑنے کی، بھاگنے کی، عوام کو ہلکان کرنے کی ضرورت کہاں سے پیش آئی؟ یہ جواب چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دھوکہ مت دو عوام کو۔ ارے کیوں؟ ابھی یہ تو تمہارا یہی حال ہے کہ بخاری، یہ تو تمہارا منکرین حدیث والا کام ہے، تمہارا یہ منکرین حدیث والا کام ہے کہ کوئی کہے تم بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہی تو تمہارا منکرین حدیث والا کام ہے۔ ارے وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ کتنے ہنسی بیچارے سوال کل کر کے بدل گئے۔ ارے کوئی نہیں بدلا، بلکہ تمہارے لوگ جو ہیں منکرین حدیث ہو گئے، کوئی انجینئر مرزا کی طرف چلے گئے، یہ کوئی قادیانی ہو گیا۔ کیا کمی ہے؟ ٹھیک ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدہ طحاویہ العقیدۃ الطحاویہ لکھا، اور امام ابن ابی العز نے ہے نا شرح عقیدہ طحاویہ لکھا۔ اس عقیدے میں کیا کمزوری ہے؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اس میں انہوں نے بیان کیا، تو وہ بھی تو مانتے ہیں، عقیدت طحاویہ تو مانتے ہیں، عقیدت الطحاویہ بھی تو مانتے ہیں، عقیدت الطحاویہ بھی مانتے ہیں، یہ تمہارے بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو مانا ہے۔
इसमें क्या तुम्हारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने माना है, क्योंकि हनफी हमने माना, क्यों नहीं माना? हमने कब कहा? झूठों पर अल्लाह की लानत। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो तुम्हारे बस की बात नहीं है बात करना, इल्मी बात करना। देखो सुनो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इल्मी बात करना तुम्हारी हैसियत नहीं है, मुझे पता चल गया। तुम एक गली कुच्चे रजीले जैसे आदमी बात करते हो, ठीक है, खाली चिल्ला के बेमतलब इल्जाम तराशी करके। ये रजीलों जो गली सुनो ना, तुम जो गली में लुक्के टपोरी रजीलों वाली बात है वो तुम्हारे अंदर है, जो बात है वो मुदल्लल होती है बेमतलब ऐसे, ये वहाँ भाग गए, वो कभी रजील वहाँ चला गया, कभी वहाँ उस गली में घुस गया। अरे ये क्या है तुम्हारे अकायद पे बात हो रही थी, फिर तुम्हारे अमल। सुनो मैंने तुमको समझाया ना, मानने का बस ये बात समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आया। क्या बताए इसको? जब तुम हदीस पर झूठ बोल सकते हो, कुरान पे झूठ बोल सकते हो, तो कहीं भी कर सकते हो। देखो तुमने पहले कुरान पर झूठ बोला कि अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है जात के एतबार से, और आए तो तुमने पढ़ा है मुस्तवी हुआ अर्श पर, लेकिन इसकी तशरीह और इसका कोई सबूत नहीं दे पाया कि मुस्तवी का मतलब होता है कि जात के एतबार से सिर्फ अर्श पर बैठना। फिर तुम अपनी नमाज भी कुरान हदीस के मुताबिक साबित नहीं कर पाए, फिर झूठा बोल रहा है बैठना। ये बैठने की बात, ये गुमराही है, ये मुशब्बिहा का अकीदा है जो तुम बोल रहे हो, बैठने वाली बात। माशाअल्लाह, ये तुम्हारा जूनागढ़ी जो वो है मुशब्बिहा अकीदा यानी गुमराह फिरकों का था, मान लिया तुमने। नवाज बैठने की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, बैठना उसने कहा है ना, उसी ने कहा बैठना कहा है। जूनागढ़ी ने तर्जुमा किया है नवाज सिद्दीक हसन। तुमने का माना ना गुमराही है तुमने। अच्छा जूनागढ़ी गुमराह है, तुमने मान लिया मोहम्मद जूनागढ़ी गुमराह है तुम्हारा आलिम। बैठना अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैठने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना किसने किया बता? ये जूनागढ़ी तुम्हारे मोहम्मद जूनागढ़ी ने तो तुम्हारे अब्बा होंगे, तुम्हारे हम मुकल्लिद नहीं है तुम्हारी तरह। वो देखो अभी बदियुद्दीन का अंधा मुकल्लिद बन के हवाले दे रहा था, अब कह रहा कि वो मुकल्लिद नहीं है। ये झूठा आदमी, कितना झूठा आदमी है। बदियुद्दीन की किताब पे हवाले दे रहा था। तेरी वो तहकीक की जरा बता, तू बता। हाँ मैं तो किसकी? हाँ मैंने मेरी तहकीक है, मैं असल किताब से भेजा, बिल्कुल मैं असल किताब से भेजा। हाँ उन तक तो मेरी असल किताब है ना, उनसे जिनका मैं हवाले दे रहा हूँ, वो अंधा मुकल्लिद है जिनकी दुनिया तकलीद करती है, उनकी हम करते हैं। तो तकलीद से इनकारी है ना, तो क्यों तकलीद करता है अपने बदियुद्दीन का? हम तो तकलीद नहीं मानते, तुम कहते हो हम तकलीद नहीं मानते, फिर बदियुद्दीन की तकलीद क्यों की है? हम तो मानते हैं ना तकलीद, हम तो लाएंगे किसी का हवाला। लखनऊ की किताब का मैंने हवाला दिया। तुम्हारे दादा जानते हैं क्या? तुम्हारे दादा जानते हैं? खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह कुछ हवाला नहीं दिया, कोई हवाला नहीं दिया, कोई हवाला। वो बदियुद्दीन की नकल से दिया है ना, तेरा बदियुद्दीन तो अंधा मुकल्लिद है, असल किताब से भेज अपने बदियुद्दीन। ये झोला छाप आलिम से तो नकल करके अंधा मुकल्लिद बन के तो हवाला देगा, तेरा हवाला मानेंगे? गुमराह आदमी जो गुमराह होता है उसका हवाला कौन मानता है? क्या गलत? ऐसा थोड़ी होता। ये अंधा मुकल्लिद अब कहता है गलत साबित, ऐसे इसका मतलब हम हवाला दें तो असल किताब से मांगो तो हम कहें तू गलत साबित करके देखा, ये उसूल है। अभी उसको हमने देखा भी नहीं। तो क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? मेरी गलती है, तू नहीं देखा, मैं तो भेज दिया तेरे पास, तू दे सलाहियत नहीं है। क्यों बात कर रहा है? तो क्या हुआ? देख तेरे ऊपर है ना, हमारी थोड़ी गलती है, हमने तो भेज दिया। अब तेरे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि असल किताब से तहकीक करके हवाला दे सके। किसी का अंधा मुकल्लिद बनना था तो ये जाहिल लोग क्या कम है? जो अंधा मुकल्लिद तुम लोगों में जो जाहिल हैं वो क्या कम है? तुम्हारे उनमें क्या फर्क रह गया भाई? तो बोलता बड़ा मुहक्किक है, बड़ा मुज्तहिद है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का तकलीद का इनकार करता है, मुज्तहिदीन का तकलीद का इनकार करता है। और किसकी अंधी तकलीद में गिरा?
बदियुद्दीन, जो अभी जिसको कुछ आता जाता भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी अंधी तकलीफ यही होता है जो बड़े बड़े लोगों की तकलीफ का इनकार करता है, छोटे लोगों की तकलीफ में पड़ता है, वो यही होता है, अंधी मुकल्लिद बनता है। यही होता है, ये तुम्हारे लोग। हाँ, अपने बड़े बड़े उलमा का, अपने वो नजीर हुसैन देलवी को बोलता है, नजीर हुसैन देलवी को बोलता है वो गुमराह था, उसको हम लात मारते, उसके हम मुकल्लिद नहीं है। सनाउल्लाह अमृतसरी को बोलता है कि वो मतलब जो तुम्हारे मन का जो ना रहे उसको बोल दो ये कुरान हदीस के खिलाफ है, जो मन का रहे तो तुम्हारे कुछ मनसा नहीं है, तुम्हारा मनसा गुमराहियत है, अपने नफ्स परस्ती में है। तुम्हारा जो नफ्स परस्ती है हम जानते हैं, तुम्हारा कुरान हदीस कोई मनसा नहीं है, नफ्स परस्ती है। कुरान हदीस अपने मनसे से इनकार करते हो। और ज़ईफ़ हदीस जिस पर झूठा इल्जाम लगा है, बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन ने इल्जाम लगाया है, तो किसका भी तकलीद करने लगा? शुएब अर्नाउत की बात करने लगा। ऐसे लोग हैं, देखो ऐसे कोई हमारे घर का कोई हवाला नहीं है। शुएब अर्नाउत ये सलफी आलिम है। हम कहाँ, कौन कहता है? हनफी थे, हनफी थे। लखनवी आपके नहीं है? अब्दुल हई लखनवी, अब्दुल हई लखनवी का हवाला कहाँ दिया तू? हवाला कहाँ दिया? हवाला कहाँ दिया? हवाला कहाँ दिया? नहीं, हवाला कहाँ दिया? हवाला कहाँ दिया? ऐसा बड़बड़ करने से हवाला तुम्हारे बस जा भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ बदियुद्दीन की अंधी तकलीद करो, वही तुम्हारे बस की बात है। जब हवाले तुम्हारे पास होगा तब आके बात करना, नहीं तुम्हारे जैसे लोग के हमारे हैसियत से बात करने के लायक नहीं है। हम तो तुमको समझे थे, तुम्हारे जैसे लोग ना नहीं, अंधी तकलीद करके बात करना है तो कोई भी करेगा, जाहिल भी कर लेगा जिसको अंधी तकलीद करके बात करना है। तुम तहकीक करके जब बात कर रहे हो, अरे ये सुनो, ये आइडियो सब सुनेंगे खुद ही समझ जाएंगे तुम कितने अंधे बड़े मुकम्मिल हो। अब बदियुद्दीन के अंधे मुकल्लिद उसकी तकलीद करके, आइडिया जब जाएगी तो खुद सब लोग समझ जाएंगे ये फिरका अहले हदीस के गैर मुकल्लिद जो है कितने बड़े अंधे मुकल्लिद, अंधे अनभक्त है, जो दावा तो करेंगे हम उलमा मुहद्दिसीन या मुज्तहिदीन की बात नहीं मानते, उनकी तकलीद नहीं करते, लेकिन वो बदियुद्दीन छोटे मोटे उलमा की झोला छाप उलमा की मान लेंगे। कोई इंसाफ दीन ने अपना नाम नहीं बताया, अपना पता नहीं बताया, तुमने पूछा, फोन किया, तुमने फोन करके उसके बाद असल किताब का हवाला मांग रहा है। जो इंसाफ पसंद होंगे वो सुनेंगे, वो समझेंगे। अरे लेकिन इंसाफ पसंद तो होंगे भी तो सुनेंगे। उमर भाई ने ये देखो, फिर उसके बाद तुमको असल किताबों के फौरी तौर पर नहीं मिलते तब तो सूट था। तो तुमने वादा क्यों किया था? तुमने वादा क्यों किया? तुमने वादा किया अभी तुमने तो अभी वादा क्यों किया? सुनो तुमने वादा किया। ये बड़ा झूठा पक्कार हो यार, बहुत झूठे पक्कार हो यार, बहुत झूठे, बहुत एक नंबर झूठे पक्कार हो। किताब का हवाला दो और तुम उस किताब में खोल करके वहाँ बैठे रहो और बोलो असल किताब का हवाला दो। ये तो बहरहाल किसी के बस की बात नहीं है कि फौरी तौर पर किसी किताब का हवाला दे दे चलते फिरते कहीं पर भी है। आवाम जो सुनेंगे उनको ये शऊर होगा कि नहीं होगा कि आलिम साहब ने अपना नाम भी नहीं बताया, आलिम साहब ने अपना पता भी नहीं बताया, अचानक फोन कर दिया है ना, और उसके बाद असल किताबों का हवाला आलिम साहब मांग रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़े झूठे तो आप साबित हो जाओगे मौलाना साहब, सबसे बड़े झूठे तो आप साबित हो गए। बस हो गया। पहले उसूल मत बताओ हमें। सुनिए अभी तुम्हारी झूठ मक्कारी अभी मैं साबित कर देता हूँ। सुनो आपकी झूठ मक्कारी अभी हम साबित कर देते हैं। असल हवाला क्या है, रावी में खलल क्या है, सनद पर बहस हुए, मतन पर बहस हुई, ये सब होता है हजरत। सुनो अभी आप बोल लिए ना, अभी सुनो, अभी हम बीच में आपसे पहले ही बोले आपको बात नहीं करना, आपको एतराज है कि आपके पास किताबें नहीं है तो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता टाइम ले लो, उस टाइम हम बता दो, हम फोन करेंगे। दूसरी बात, पूरी बात सुनो, खामोश अभी मुझे पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो, मैं खामोश था।
अभी मैं खामोश था ना, मैं खामोश था ना। चुप रहो पागल आदमी, अरे चुप रहो यार पागल आदमी। अरे सुन ना बात को पागल, ओ मैं मौजूद है, सुनो भाई, अरे सुनना मेरे भाई, सुनना भाई, सुनना भाई, सुनना भाई, और उसके बाद इस मौजूद पर आपसे डिस्कशन। अरे सुनेगा, बड़बड़ कर रहा है ओ बड़बड़ भैया, सुनोगे तुम? सुनते क्यों नहीं पूरी बात यार? मैं तुम्हारी बात सुना, मैंने बोला आप सुने नहीं। सुनो, उससे पहले मैंने सुना ना पूरी बात, उससे पहले पूरी बात सुना। जब मेरी बारी आई तो मुझे बोलने दो ना, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? बारी कहाँ आपकी? मेरी बारी आई, मांगने लगते हो। अभी है मेरी बारी, बोलो। चलो मैं सुनाता हूँ। मैं बीच में ही, जब तुमने कहा था कि भाई तुम्हारे पास असल हवाले नहीं तुम दे सकते, तो मैंने कहा था कि भाई तुम टाइम ले लो, असल हवाले जमा कर लो। जब तुम्हारे पास असल हवाले देने की सलाहियत पैदा हो जाए तब तुम बोलो, हम उस वक्त फोन करेंगे और बात करेंगे। दूसरा, जब हमने कहा कि आप अपनी नमाज कुरान और हदीस के मुताबिक साबित नहीं कर सकते, तो आपने कहा हम कर देंगे। हमने कहा अगर ठीक है बात करेंगे तो आपको तुरंत हवाला देना होगा, असल किताब से आप देंगे, तो आपने एग्री किया है, हाँ हम देंगे। लेकिन जब बात शुरू हुई तब फिर वही आप पुराना राग अलापने लगे कि आपके पास असल किताबें नहीं हैं। जब असल किताबें नहीं थी तो आप झूठ मूठ क्यों इकरार किए कि आप असल किताबों का हवाला दे देंगे जब हम मांगेंगे? तो आपने इसका क्यों इकरार किया, ये बताइए। हो गई बात? हाँ बोलिए। आप जब फोन लगाए और फोन लगा करके जो है आप बोल रहे हो कि मैं आपसे एक मसला समझना चाहता हूँ, ठीक है? फोन लगाने की बात छोड़ो ना यार, अभी बोले की बात करो ना। सुन लो, आप बोलने लगे और उसके बाद मासूमियत जाहिर करते हो, पाकीज़गी और तहारत बताते हो। मैं नमाज की बात कर रहा हूँ जनाब, आप नमाज के ताल्लुक से बोले ना कि आप असल किताब से हवाला देंगे कि नहीं देंगे, बोलो कि नहीं बोले हो? सुन लो आप। सुन रहे हैं? बोलो मैं बोलोगे वही गैर जरूरी बातें, बोलो जो भी बोलना है। गैर जरूरी बातें नहीं है, वो जरूरी बातें नहीं, वो गैर जरूरी लगाए। समझने की बात आप कर रहे थे, है ना? और उसके बाद आप समझाने लग गए, मुनाजरे वाला जो है पहलू आ गया उभर करके सामने। एक तो यहाँ पर गलती हुई आपसे, है ना? आप जब शुरू में फोन लगाए थे तभी आपको बोलना चाहिए था कि भाई मैं मुनाजरे के जो है ना मिजाज और तबीयत को लेकर के आपको फोन किया हूँ, इस मौजू पर हमें मुनाजरा करना है। असल किताबें आपके पास हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए, और नहीं तो फिर बाद में ये होना चाहिए था। आप तो बस धड़ाधड़ शुरू हो गए, आदमी रास्ते में है, आदमी बाजार में है, कहाँ है कुछ पता नहीं है आपको, आपने लगा दिया बस, है ना? ये बताने के लिए अवाम में वाही देखो हमने फला जगह फोन किया था, फला आदमी लाजवाब हो गया। अरे वो अवाम पागल ही होगी तो ये सोचेगी कि हमारे अल्लामा साहब ने डायरेक्ट फोन लगाया, न कोई पहले से अलैक, न सलैक, न बाप, न चीज, न वक्त का तयन, न मौजू का तयन। और अवाम समझ रही है, अवाम को बेवकूफ मत बनाओ। रोजाना यहाँ समझने के लिए अल्लाह की तौफीक से आते हैं और लोग बदलते हैं, है ना? ये आपकी खाना खाओ शरीयत सुन लीजिए, अब हो गया, हो गया। तुम्हारे हमारी इस बात का कोई जवाब नहीं है। देखो आप शुरू में कह दिए होते, लेकिन आपने बीच में कहा कि आपके पास असल किताब से हवाले नहीं है। जब हमने आपकी पकड़ की आपके अकीदे पर, जो आपका ये गलत अकीदा है कि अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से सिर्फ अर्श पर है, जब हमने उस पर दलील मांगना शुरू किया तो आपके पास तक कोई दलील नहीं था, तो आप बड़बड़ाने लगे। हमने कहा असल किताब से हवाले दो, आप कहे कि हम चलते फिरते कहाँ किताब से। सुनो पूरी बात। तो आप बड़बड़ा के बोलने लगे असल किताब का हवाला दिया नहीं। हमने कहा असल किताब से हवाला दो, कहने लगे मैं चलते फिरते कहाँ से असल किताब का हवाला दूंगा। तो मैंने कहा भी जनाब ठीक है, खत्म करिए बात, आप हमको टाइम बताइए, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता जितना भी टाइम है आपके पास। जब असल किताबें जमा हो जाए, आपके काबिल हो जाए कि आप बात कर सकें, तो हम आपको उस वक्त फोन करेंगे। ठीक है, ये एक बात तो मैंने उसमें तस्रीह कर दी। तो फिर दूसरी बात, फिर भी आप बात करते रहे। फिर आपने नमाज के ताल्लुक से जब बात हुई तो आपने कहा कि नमाज के ताल्लुक से आप अपनी नमाज कुरान हदीस के मुताबिक साबित करेंगे, और आप जो है असल किताब से हवाला भी देंगे, ये आपने इकरार किया। तो आप अगर चलते फिरते हैं, अगर आपके पास असल किताब से हवाला नहीं था, तो आप क्यों इकरार किए कि हम आप असल किताब से हवाला देंगे? यानी आप बदियुद्दीन के अंधे मुकल्लिद बनकर दूसरों को जैसे बेवकूफ बनाते हैं, वो समझ रहे कि यहाँ भी झूठ मकारी चल जाएगी,
بالکल नहीं चलेगी। आप असल किताब से अगर हैसियत नहीं थी आपकी तो आपने इकरार नहीं करना चाहिए था ना, आपको टाइम लेना चाहिए था भाई। अभी भी वही बात हो रही है, फिर भी आप उसी बात को तोल दे रहे हैं। जितना आप तोल देंगे आपकी झूठ मक्कारी साबित हो जाएगी। आपके जितने मुरीद हैं, जितने आपके पास जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, वो आपकी ये इल्मी हैसियत खुद समझ जाएंगे, ठीक है, कि आपके पास तहकीक नहीं है। अंधी तकलीद बन के दूसरों की तहकीक दूसरों पेश करते हैं। तो हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल मुहद्दिसीन की तहकीक पेश करने में क्या बुराई है, बताइए। हाँ बताइए, बात नहीं हुई लेकिन आप बोलिए। हाँ, आप खामोश रहना आप थोड़ा सा, ठीक है। नमाज के ताल्लुक से जब बात हुई तो ये हुई बात कि आपको ये खामी, आपने इल्जाम क्या लगाया कि पूरी ज़ख़ीरे हदीस से और कुरान से तुम 2 रकात नमाज नहीं साबित कर सकते, या नमाज को तुम नहीं बता सकते हो हदीस से, ठीक है। नहीं, ये नहीं, अपनी नमाज कुरान और हदीस के मुताबिक तुम साबित नहीं कर सकते, जबकि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है, मगर ये तुम्हारा साबित नहीं कर सके कि तुम्हारा अमल कुरान हदीस के मुताबिक है, क्योंकि तुम कुरान हदीस के मुखालिफ हो, ठीक है। हाँ, ये सवाल नहीं है कि कुरान हदीस में ये मसला है कि नहीं है। अब हो गई बात आपकी, इसमें बात ये नहीं थी कि नमाज को कुरान की रोशनी में साबित करो। आपका दावा था कि तुम अपनी नमाज कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकते। सुन लीजिए हजरत, हाँ, ये जो ट्रिक आपको बताई जाती है, मुस्कुराओ और ये करो ताकि सामने वाला वो चीज छोड़ दो और जगहों पर ये सब चला लेना है। हाँ नहीं, हाँ, यहाँ नंगा करने के लिए सारे जो वसाइल मौजूद है अल्लाह की तौफीक से। हाँ सुनिए पहले आपने क्या कहा, आपने कहा अपनी नमाज को तुम हदीस से साबित नहीं कर सकते। उस पर मैंने क्या कहा, हदीस के मुताबिक कहते हो कोई एक मसला लाओ जो हदीस से हट करके हो। हमारे यहाँ कोई एक मसला लाओ, बताओ हदीस से हट करके हो, सूरज बाद में डूबेगा उससे तौबा पहले कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये बात हुई तो आपने फिर उस पर एक मसला बयान किया, मैंने उस पर एक हदीस पेश की, आपने उसमें जो है सनद पर बहस की और खामियां निकालने की कोशिश की। आपके घर से, आपके उलमा की किताबों के हवाले से मैंने ये साबित किया नहीं है जिनको तुम कहते हो तो जाहिर बात है उनके मुताबिक भी मौजूद है ना, उस रिवायत के शवाहिद भी मौजूद हैं, ये बताई गई है। फिर उसमें जो है अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया गया, इमाम खत्ताबी का हवाला दिया गया, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बात चली, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बात चली, ये हुई। अब उसके बाद अगर उन किताबों को मैं आपके पास नहीं पेश कर पाया तो हमारी गलती है। देखिए तो बात है, दावा है और पेशी है। सुनिए आपने गलत बयानी से काम लिया है। आपका ये कहना कि आपने साबित किया है, ठीक है, बाकी ये सरासर झूठ है। देखो सामईन ये खुद समझ लें कि ये बड़बड़ किए। मैंने इनसे असल किताब से हवाला मांगा तो इन्होंने इकरार किया कि अपने आलिम बदियुद्दीन राशिदी, सुनो बदियुद्दीन राशिदी, अभी खामोश रहो। देखो ये मालूम है, अभी खामोश रहो। मालूम है ऐसा ही मुनाज़रे आपके यहाँ किए जाते हैं, खामोश रहो, वो झूठ मक्कारी यहाँ नहीं चलेगी। खामोश रहो, ये अंधा मुक़ल्लिद बन के खामोश रहो। ये बंदा देखो कुरान अगर हवाले ना दे पाया, इसने कहा कि ये तकलीद करके अंधी तकलीद करके इसने अंधी तकलीद करके हवाला देना शुरू किया। असल किताब से कोई हवाला नहीं, जबकि इसको नमाज शुरू होने से पहले जो बात शुरू हो रही थी, इससे हमने पहले वादा ले लिया था कि भाई असल किताब से सुनो असल किताब से हवाला दोगे, रिकॉर्ड में मौजूद है, जो लोग सुनेंगे वो समझ लेंगे। बिल्कुल समझ लेंगे, बिल्कुल ये रिकॉर्ड में पूरे मौजूद है। तुमने खुद कहा था कि असल किताब से हवाला दे दोगे। अरे वो सुनेंगे, माशाअल्लाह सब सुनेंगे। तुमने खुद कहा था कि असल किताब से हवाला दोगे। जब असल किताब से हमने हवाला मांगना शुरू किया तो पता चला ये बदियुद्दीन राशिदी साहब के अंधे मुक़ल्लिद है। ये
हाँ, और ये मुकर गए, अपने ही बातों से मुकर गए और झूठ बयान झूठ बोल रहा था तो मैंने तुम्हारे झूठ को बताने के लिए तुम गैब का दावा भी करते हो, तुम मुकल्लिदीन गैब का दावा भी करते हो और कुछ का कुछ बोलते हो कि ज़ुबैर अली ज़ई की तुम बात कर रहे थे आँख बंद करके, इसमें गैब का तुम दावा कर रहे थे कि ज़ुबैर अली ज़ई का कोई है ना, उनकी किताब से कोई बात पेश की जा रही है। भाई अगर वो सुनने अभी बात के अंदर वो हदीस ना हो, सुनने तिरमिज़ी के अंदर वो हदीस मौजूद ना हो, तब तो हमारी गलती है कि हमने यूं ही हवा में बोल दिया है, पेश कर दिया है। हवा में ने अगर उसको हसन ना कहा हो तब हमारी गलती है। इमाम खत्ताबी ने अगर उसके जो है होने की बात तब हमारी गलती है। इमाम तिरमिज़ी का तुम्हारे उलमा ने कहा है कि उनकी तहसीन नहीं मानी जाएगी। और रहा दूसरी बारे में क्या है तो उसका हवाला दोगे तब माना जाएगा कि तुम्हारा हवाला दो, असल किताब से हवाला ऐसे नहीं, हवाला भेजो, हवाला अरे भाई हवाला किया तो हमारी गलती है, तो भेजो ना, भेजो तुम तो लो कम से कम। नहीं हवाला भेजो, हवाला भेजो यार। करते हैं अरे मोहतरम ये बदियुद्दीन की अंधी तकलीफ मत करो, अंधी तकलीफ मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजाल हैं ये अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं। तकलीफ मत करो। इमाम अबू दाऊद मोहम्मद बिन इसहाक को मुतज़िला मानते हैं। अब सोचो ये मुतज़िला की रिवायत मान रहा है। जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे इमाम अबू दाऊद ने कहा, क्या कुछ भी कहो, इमाम अबू दाऊद ने कहा है वो मुतज़िला कदरिया फिरके थे, कदरियून मुतज़िलियून। हाँ, इमाम अबू दाऊद ने इब्ने हजर की बात सही नहीं। इब्ने हजर ने भी उनको मजरू कहा है, बताओ। हाँ अब बताओ, इब्ने हजर ने मजरू कहा और उसके बाद ये भी कहा इमाम अबू दाऊद ने इसकी तखरीज की है। तुम जब हवाला दोगे तब बात होगी ना, तुम्हारा झूठ मक्कारी पकड़ा जाएगा। पहले हवाला की तखरीज फिर अंधी तकलीफ मत हिदाया। मौलाना कान खोल के सुन लीजिए, अंधी तकलीफ नहीं होती है। मैं मौलाना नहीं हूँ जनाब, मुझे मौलाना मत बोलिए। दूसरी बात है ये, असल किताब से हाथ करिए। मौलाना हूँ, मौलाना की कभी थोड़ी। असल किताब से बात करिए, असल किताब क्या हो। अभी तो आपने अपना तारुफ भी नहीं पेश किया है। तो ये बताइए मैं कब फोन करूँ आपको, आप पूरी तहकीक के साथ बात करेंगे, बताइए। ये पहले सुन लो आप, मैं ये बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए। मैं क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। असल किताब से कब बात करोगे आप, वो टाइम दे दो, मैं उस वक्त। अगर आप बोल देते हैं हाँ हमने सुन लिया, फिर अगर इसको मैंने नहीं पेश किया तो हमारी गलती है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कब बात करेंगे असल किताब से, वो बताइए। उस वक्त मैं आपको फोन करूँगा। आपने इतना सुनो यार बात को। अब बेराया की तखरीज अहादीसिल हिदाया का हवाला हमारे जिम्मा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं आवाज। कब आप असल किताब से हमसे बात करेंगे वो बताइए, हम टाइम बताइए, 2 दिन 4 दिन। मैं कब आपको फोन करूं कि असल किताब से आप बात करेंगे। असल किताब ही की बात मैं कर रहा हूँ। असल किताब बाजे तो भेजिए, हमारे पास भेजिए, असल किताब है आपके पास, हमारे पास भेजिए असल किताब। मैं भेज रहा हूँ, फोन काटो। तो फोन काट के भेजिए। हाँ बिल्कुल भेजता हूँ। हाँ फोन काट के भेजिए फटाक से। गिराया की तकरीब अहादीस याद रखिए इसको। गिराया की तकरीब अहादीस। अरे यार भेजिए असल किताब, और उसके बाद दोबारा मैं कब फोन करूँ आपको। आप फोन काटे फौरन पहुँच रहा है थोड़ी देर में। मैं दोबारा फोन कब करूँ। आप पहले उसको देख लीजिए, गौर कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ दोबारा मैं फोन कब करूँ। आपको मर्जी है। मैं दोबारा तो असल हवाले से बात करेंगे, कब फोन करूँ, कब करूँ, किस असल हवाले पर, किस मौजू पर। हाँ किस मौजू पर, मौजू तो बता पहले।
वही आप मुस्तवी जो जात के एतबार से मानते हैं उसके सब हवाले जमा कर लो, उससे बात करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद नमाज पे बात करेंगे, ठीक है? पहले आप जवाब मिल जाएगा, सब मैं पहले भेज दूंगा, आप उसको पहले नहीं मुझे कर लेना, उसके बाद बात करना। आपको मैं कब फोन करूं, हवाले कब जमा होंगे वो बताओ। हवाले आपको मिल जाएंगे सब। अरे यार तुम थोड़ा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा हो क्या दिमाग में? मैं जो पूछ रहा हूँ बता ही नहीं रहे हो। दोबारा कब फोन करूं, हवाले कब जमा कर लेंगे? नाम तो बता अपना, मेरा नाम तो बता। हाँ ऐसा बोलना भाई, मोहम्मद उमर नाम है। ये शुरू में तुमको बोलना चाहिए था। पूछा तो फोन किए तो बोलना चाहिए था, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मैं फला जगह से बोल रहा हूँ, मेरा मकसद मुनाज़रा करना है, अपने अवाम को जो है धोखे में डालना है ना? ये चलते फिरते हम मुनाज़रा करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए तुमको, है ना? ये सारी बातें शुरू की होती हैं। तुमने पूछा क्या? तुमने पूछा? मैं आपने पूछा था पड़ेगी ना, क्यों नहीं पूछेगी? तुमने भी में से सामने वाला कौन है वो मालूम होना चाहिए। तुमने भी तो नहीं पूछा, तुमने तो नहीं बताया अपना, ना पूछा ना बताया, ना पूछा ना बताया। मुझे फोन कर रहे हो? हम जाने पूछे का बात तुम दूसरों को जो है पागलपन कहते हो, पागलपन। हम जाने पूछे कोई मतलब नहीं, तुमने बताया तुम्हारा नाम, तुम्हारा जगह, बात नंबर जहाँ से तुमने लिया होगा वहाँ मेरे बारे में तुमको नहीं बताया किसी ने, तो तुमको अपने बारे में पहले पेश करना चाहिए, बताया। तुमने पूछा क्या? ना तुमने पूछा ना अपने बारे में बताया, ये तुम्हारी गलती है ना? गलती तुम्हारी है। अच्छा ये आपको अब तो सुनो यार से बात कर रहा हूँ, अब जान लिए हो, अब ये बताओ मैं कब फोन करूँ दोबारा जो असल किताब से बात कर सके हो? बताओ, परसों करूँ, कल करूँ, कभी करूँ? कल करो बेटा। अपने बाप को बेटा बोलेगा? अभी मदरसा चल रहा है। ये बताओ, अपने बाप को बेटा बोलता है क्या? तो अपने बाप को बेटा बोलता है? संडे को फोन कर, संडे को कै बजे? संडे को फोन कर, पूरा दिन खाली हूँ मैं, ठीक है? टाइम तो बता दे। ठीक है चलो। मैं टाइम तो तू समझना, पूरा दिन खाली कभी भी फोन कर सकता है तू, मगरिब से पहले तक, ठीक है? मगरिब के पहले पूरा पहले तक कभी भी फोन कर सकता है। चलो हाँ चलो समझ में आ गया, ठीक है मैं फोन करता हूँ। फिर बहाना मत करना कि मेरे पास असल किताब नहीं है। अरे पागल, बहाना कौन करता है? आज तो बहाना ही नहीं किया, जब तू अचानक फोन किया और 2 घंटे तक तकरीबन बात हो गई। फिर वादे किया ना, फिर बीच में वादा करके हाँ असल किताब भेजूंगा, मुकर गए कि नहीं मुकर गए? नहीं मुकर क्या गए, है ना? रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि मैंने वादा किया नहीं किया, तुमको पता चल जाएगा। बिल्कुल रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आवाम से भी मालूम हो जाएगा मैंने वादा किया कि नहीं किया। बिल्कुल कितने वादे किए, अभी एतराज का कुछ जवाब नहीं दे पाए। मैं दिया ना, भेजा, स्कैन भेज दिया जितना तुमने मांगा था, मैंने भेज दिया। एतराज मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ और समझ रहे हो, मैं एतराज पूछ रहा हूँ। जो एतराज मैंने किया था, है ना, अशरीयत मातुरीदियत सब दिया, सब दिया, सब लोग समझ जाएंगे सुन के, उसकी फिक्र मत करो। अपनी खैर बनाओ, जो तुम्हारा अकीदा गलत अकीदा कुरान हदीस से गढ़ लिया है उसकी खैर बनाओ, ठीक है? आए दिन लोग कशा आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अपना अकीदा गढ़ लिया है उसके बारे में अपनी जमा करो अपनी असल किताब से। हमने बता दिया, हाँ बिल्कुल गड़ा है। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके अकायद को छोड़ के यहाँ वहाँ भाग रहे हो, उनके पीछे तो तुम तुम्हारे यहाँ है। इस तरह तो अल्लाह के रसूल की हदीस छोड़ के, सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस छोड़ के तुम इधर बुखारी मुस्लिम सुनन अबू दाऊद की हदीस की तरफ भाग रहे हो। तुम भी अरे बरेलियों में तुम में तो कतान कोई फर्क ही नहीं है। ये तो यही हाल हुआ। सुनो अरे यार बड़बड़ाने लगा। ये तो ऐसा हुआ कि तुम भी कुरान हदीस का दावा करते हो मगर साबित नहीं है, ऐसे शिया भी करता है वो भी साबित नहीं है, कादियानी मुनकिरीन हदीस ये सब करते हैं मगर साबित नहीं है, तो उन्हीं के कैटेगरी में हो तुम भी। नहीं तो तुम बिल्कुल उन्हीं की कैटेगरी में आ गए। ये तुम साबित करो कि हमारा कौन सा अमल हदीस के मुताबिक नहीं है, कुरान के मुताबिक नहीं है। हाँ बिल्कुल हम साबित करेंगे,
बिल्कुल हम साबित करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम साबित, अरे बिल्कुल करेंगे। साबित करोगे? अरे आप परेशान ना हो, अभी तो एक अकीदा गलत साबित करेंगे, उसके बाद तुम्हारा अमल साबित करेंगे। अरे आप इमाम को बना के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम की रोटी खाते हो यार, क्या साबित करोगे आप? तो तुम नहीं इमाम बनाए हो, तुम नहीं इमाम बनाए हो। इमाम अगर बनाए हैं तो यार आप लोग हमें इल्जाम क्यों देते हो गैर मुकम्मिल होने का? तुम तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के इमाम आजम कहते हो। इमाम अगर हम बनाए हैं किसी को तो आप हमें गैर मुकल्लिद होने का ताना देते हो। तो गैर मुकल्लिद इसलिए करते हैं कि तुम अपने नफसानी ख्वाहिशात पर भी चलने लगते हो ना। अच्छा, और नाम के लिए बनाए, जैसे नाम के लिए, जैसे नाम, जैसे सुनो यार, जैसे नाम करके तुमने हलालो हराम किसी और से लिया, हलालो हराम के मसाले किसी और। ये तो तुम्हारा काम है जनाब, तुम्हारा, ये तो तुम्हारा काम है, ये तो तुम्हारा काम है, ये तो तुम्हारा काम है। हलालो हराम कुरान हदीस छोड़ के अपने नफसानी ख्वाहिशात में चले गए, ठीक है, अपनी हाँ